this computer. Okay. So we are going to discuss basically the placement of 2020, because this has completed from our side. Although we are still providing help to some students, and we will continue this at least up to March, April, right? March, April 2021, we will continue to provide support to these students. Placement season for 2021 batch is in the full swing. And I would like to discuss what has happened till now. Generally, this season starts from 1st of August. Every year for example, your placement season will start from 1st of August 2021. कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लें अपने आप को, ठीक है? This time this session started on 20th August 2020. 20 दिन देर से शुरू हुआ due to corona, right? So, but that will not happen for the next year. So you keep in your mind this date, 1st of August 2021. This is a very important date, and we have to plan according to this date. One thing I would like to mention that Mr. Sanjay Dureja is the senior manager in the training and placement cell. Unfortunately, he is not well today. That's why he is not able to attend this meeting. So I am head TNP. This is an additional responsibility besides being the head of the Department of IT. Mr. Sanjay Dureja is senior manager training and placement. Right? So basically there are three assistants. One is Promila ma'am, Priyanka ma'am, and Mr. Kashish. So these three assist us in placement operations, and we have divided responsibilities among ourselves. Basically, the corporate relation is taken care by Mr. Sanjay Dureja, and how many participants are now? It is okay, 116. And I take care about the academics part, training part, what is required, and coordination between department and training and placement cell. All right, is it clear? Yes, sir. कोई एक जिम्मेदारी ले ले, जो कहानी जैसे सुनाते हैं ना, तो हमारे बाबा जी सुनाते थे, कहते हुंकारे भरते रहना भाई, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोग के समझ में आ रहा है. जी सर. Now, first of all, because I would like to give you the entire picture of 2020 batch, because that season has completed, is complete from our side. तो इसकी मैं आपको देना चाहता हूँ एक पिक्चर. टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास जो थे वो 360 थे. Total number of eligible and interested students were 265. That is very important figure. How do we find who is eligible and who is interested? Anyone having 65, 10th 65, 12th 65, BTech 65, and no backlog. General eligibility criteria हमारा ये रहता है. बाकी कंपनी स्पेसिफिक रहता है, कुछ कंपनी 80% भी मांगती है, 60% भी मांगती है, but we consider a student to be eligible for the placement from our side if it is he or she is having 65% marks in 10, 65% marks in 12, and 65% marks in BTech, and no backlog on 1st of August.
राइट? एक्सक्यूज मी सर। या सर 10th में तो हमारी CGPA चलती है ना? उसको कन्वर्ट करने का तरीका रहता है, नीचे फॉर्मूला रहता है नॉलेज स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल से 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर 9.5 से। तो अगर 7 CGPA तो दैट्स ओके, 7 into 9.5 दैट इज 7×35 और 66.5% है, दैट्स इनफ 7 CGPA, राइट? तो अच्छा, some of you may not be interested and we would like to know this early this time because we have faced lot of problem. कैसे मैं डिस्कस करूंगा, मीटिंग थोड़ी लंबी चलेगी, आप लोगों को काफी जानकारी मिलेगी, और जो गलतियां हमने इस बार की है वो गलती हम अगले साल ना करें। तो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं जिन्हें MS करना है, MBA करना है, MTech करना है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, IAS की प्रिपरेशन करनी है, they may not be interested in the job, वो लिख के दे देते हैं हमें, एक अंडरटेकिंग हम फिल करा लेते हैं, है ना? हालांकि बहुत कम ऐसे डेडिकेटेड और डिटरमाइंड लोग होते हैं जो ये कह सकें, क्योंकि ये सोचते हैं ठीक है MBA भी कर लेंगे लेकिन एक जॉब भी ले लें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से। दैट इज नॉट फेयर, उसके नुकसान बहुत सारे हैं, आपको नहीं है, आपके बैचमेट्स को हैं, आपके जूनियर्स को हैं, कॉलेज को हैं। क्योंकि जब आप जॉब लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो कंपनी अगले साल फिर आने से मना करती है। चलिए पहले इस पे डेटा पे बात कर लेते हैं। तो ऐसे 265 स्टूडेंट्स थे जिनकी जो प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड थे और जिनके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा था। तो इसमें हमें टोटल ऑफर्स जो मिले 315 मिले थे अभी तक लेटेस्ट, राइट? इसमें क्योंकि एक बच्चे को मल्टीपल जॉब्स हम अलाउ करते हैं, उसके लिए हमारी प्लेसमेंट पॉलिसी है, वो मल्टीपल जॉब्स ले पाता है बच्चा, लेकिन उसमें हमारी प्लेसमेंट पॉलिसी है, उस प्लेसमेंट पॉलिसी का जिक्र बाद में करेंगे। जो सिंगल ऑफर, जिसके ऐसे बच्चे जिनके पास कम से कम एक जॉब था, तो 230 ऐसे बच्चे थे 2020 में जिनके पास कम से कम एक जॉब था। 95 कंपनीज ने विजिट किया, 68 कंपनीज ने ऑफर किया जॉब। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। 95 minus 68, this is 27. And I would like to tell you that any HOD or placement coordinator has joined. Yes, sir. Shikha Gupta has joined. Thank you, ma'am. Thank you. Anyone else? No. चलिए कोई बात नहीं। तो 95 minus 68 is 27. This is a very big number, and most of these companies are those companies which were offering a higher package, higher than 6 LPA. Our average package is 5.20 lakhs per annum. सर कुछ कंपनीज का नाम बता सकते हो? सब बताऊंगा, चिंता मत करो, एक मिनट एक करके। अभी तो इसी स्लाइड पे है। We are having at least a 1.5 hour मीटिंग, ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसे आपके डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। पिछले साल 2019 बैच के लिए ये पैकेज था 4.2, दैट इज अ सिग्निफिकेंट जंप ऑफ 25%। एंड दिस ईयर 2021 के लिए हमारा टारगेट 6 LPA का है, ठीक है? और आपके लिए फिर कम से कम 6.5 LPA पे वी विल ट्राई टू फोकस, बट फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, right? Maximum highest package was 30 LPA, 30.25 LPA। Amazon SDA में 2 बच्चे गए थे, ठीक है? बट इंक्रीजिंग, देखो ऐसा है कि आपने 100 मीटर की दौड़ 15 सेकंड में दौड़नी शुरू की, 15 सेकंड से 14 सेकंड पे आप आसानी से आ जाओगे, 14 से 13 पे आ जाओगे, लेकिन 13 सेकंड से 12 सेकंड में आने में ना आपको पसीने निकल जाएंगे, और 12 से 11 आने में तो मतलब फिर you have to put all your efforts, समझ रहे हो? तो ये पैकेज अगर मैं 6.5 LPA का टारगेट करता हूं 2022 बैच के लिए, so all the स्टेक होल्डर्स
of BPIT. Can you tell me who are the stakeholders of the BPIT? Most important तो आप हैं. Second, faculty. Faculty. सेकंड नंबर पे फैकल्टी है. तीसरे नंबर पे अथॉरिटीज हैं, प्रिंसिपल, डीन, एचओडीज. नंबर वाइज नहीं है, मतलब मैं काउंट कर रहा हूं, ऐसा कोई नंबर नहीं है. उसके बाद मैनेजमेंट है, टीएनपी सेल है, आपके पेरेंट्स हैं, है ना. फिर हमारे रिक्रूटर्स हैं. So if I want to bring this to the 6.5 LPA for 2022 batch, all these have to work hard and work in a coordinated manner. Only then it is possible. But I am disappointed with the strength today. 141 is very poor strength. मैंने स्पेशली डिमांड करके 300 का जूम का कनेक्शन उधार लिया. मैंने कहा 250 से तो ऊपर बच्चे आएंगे. चलिए कोई बात नहीं, ठीक है. तो अब हम आते हैं 2021 बैच पे. प्रोग्रेस कितनी हुई है अभी, इसमें मैं आपको दिखाता हूं. 2021 में अभी जो टोटल कंपनीज आई हैं, 20 कंपनीज आई हैं. 9 का प्रोसेस पूरा हो गया है और 11 का प्रोसेस अभी चला हुआ है. किसी का रिटन टेस्ट हो गया, किसी का इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू का रिजल्ट आना बाकी है. But these many offers we have. MEO 6.1 lakh per annum, 2 selections. पिछले साल ये नहीं आई थी. साइबर ग्रुप 4.5 lakh per annum, 1 selection. लास्ट ईयर का मुझे चेक नहीं कर पाया. DXC टेक्नोलॉजीज 3.6 lakhs per annum, 59 offers. लास्ट ईयर विजिट नहीं किया था. The most significant thing which I would like to tell, this is जोश टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, 6 ऑफर्स. लास्ट ईयर ये कंपनी विजिट करने आई थी और 0 सिलेक्शन लेके गई थी. और इस साल ये कंपनी कह रही थी कि भैया हम बीपीआईटी नहीं आएंगे जब आपके यहाँ से सिलेक्शन नहीं होते. तो वी पुट स्पेशल एफर्ट्स. कुछ हमने बच्चों को बताया, समझाया, मोटिवेट किया, ट्रेन किया, ट्रेनिंग दिलाई. तो दिस टाइम वी आर हैविंग 6 ऑफर्स. दिस इज अ वेरी बिग नंबर एंड वी गॉट अप्रिशिएशन फ्रॉम द कंपनी. जोश टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड 7.2 पिछली बार 0 लेके गई थी. इस बार 2 ऑफर हमारे पास यहाँ पे भी हैं. तो 8 ऑफर मेरे पास टोटल है. ठीक है. टीसीएस एक्चुअली मास रिक्रूटर्स जो है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस. टीसीएस बेसिकली 2 तरह से ऑफर करती है, एक टीसीएस निंजा और एक टीसीएस नॉर्मल. तो टीसीएस निंजा में भी हमारा एक बच्चा शॉर्टलिस्ट हुआ है, मतलब सेलेक्ट हुआ है. बाकी 15 बच्चे जो है वो नॉर्मल वाले ऑफर में हुए हैं सेलेक्ट. देखो एक चीज समझ लो, जैसे जैसे पैकेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपटीशन टफ होता चला जाएगा. ठीक है. 3.5 से 5 लाख तक का पैकेज लेना आसान काम है. थोड़ी सी भी आप एफर्ट डाल देंगे, you will be able to get this job. But this 5+ LPA, the competition will be tougher and you have to be above average. आपकी स्किल्स कुछ अलग होनी चाहिए. तो टीसीएस में एक्चुअल में टीसीएस कई तरीके से प्लेसमेंट करती है. अभी इसकी और ड्राइव्स भी होंगी. तो पिछले साल हमारे 40 बच्चे थे, इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि 40 से 50 बच्चे हमारे टीसीएस में होंगे. और चूंकि अभी इसकी और बहुत सारी ड्राइव्स बची हुई हैं. अनथिंकेबल पिछली बार 4 बच्चे लेके गई थी, इस बार पिछली बार 3 बच्चे लेके गई थी, इस बार 4 बच्चे लेके गई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट Amazon SDE जो 30 LPA का पैकेज देती है, 30 lakhs per annum. पिछली बार हमारे शॉर्टलिस्ट हुए थे 6 और उसमें से 2 फाइनल ऑफर मिले थे. इस बार हमारे शॉर्टलिस्ट हुए हैं 20. तो दिस इज ए क्वांटम जंप फ्रॉम 6 शॉर्टलिस्टिंग टू 20. इसका भी इंटरव्यू जो है इसी वीक शेड्यूल है. देखिए, लेट अस होप फॉर द बेस्ट. कितने हमारे बच्चे प्लेस होते हैं इसमें. सर जो ये कंपनीज आती है जैसे Amazon है, हाँ. सर ये जो इन पे जो सर जैसे कि 20 बच्चों ने फर्स्ट राउंड कोडिंग राउंड क्लियर कर लिया, तो डू Amazon हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू टेक फॉर रिक्रूटमेंट? अगर 20 ने भी क्लियर कर लिया तो फाइनल ऑफर सिर्फ 4 या 5 को ही मिलेगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है.
इनके क्योंकि पास पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से, क्योंकि पिछले 3-4 साल से सिर्फ 3 या 4 बच्चे प्लेस होते हैं अमेज़न में तो। नहीं देखो 2 ही हुए थे पिछली बार। एक तो पहली बात तो ये है कि आपके कितने देखो कंपनी का जो ना बीपीआईटी के स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। कंपनी का टारगेट ये होता है कि भाई 2021 में मुझे फ्रेशर्स, मान लिया अमेजन ने कहा मुझे 1000 फ्रेशर्स चाहिए, ठीक है। यस सर। वो 1000 कहीं से भी हो, उसमें से 10 बीपीआईटी से हो सकते हैं, 0 बीपीआईटी से हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सैकड़ों कॉलेज विजिट करेगी, एक ओपन टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितने ज्यादा आपके शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब 20 इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। 6 हुए थे, 6 में से तो आपके 2 हो गए, तो 20 में से अगर सेम रेशियो अप्लाई करें तो 6-7 बैठते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये 10 भी हो जाए और हो सकता है 4 या 5 भी रह जाए, 4 भी रह जाए, हो सकता है। या अगर हम बिल्कुल ही अनफॉर्चुनेट हो तो 1 भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। हालांकि बहुत अनफॉर्चुनेट है, पिछले साल एक कॉलेज में से 6 शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसके में से 0 सिलेक्शन थे। क्योंकि कोडिंग टेस्ट अलग चीज है, इंटरव्यू अलग चीज है, बिल्कुल। ऑल्दो इट इज वेरी लेस लाइकली कि 20 में से 0 सिलेक्शंस हो, वेरी लेस लाइकली, राइट। एक और जो कंपनी जिसका अभी हमारा 8 लाख पे आती है, जेरस एसोसिएट्स, ये कंसल्टिंग फर्म है, इसका 8 लाख का पैकेज है और इस बार 196 शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं हमारे, ठीक है। और इसका इंटरव्यू भी अभी इसी वीक शुरू हो जाएंगे। 196 शॉर्ट लिस्ट। पिछले साल हमारे 80 शॉर्ट लिस्ट थे, 26 लेके गई थी बच्चे कंपनी। 80 शॉर्ट लिस्ट थे, 26 लेके। इस बार 196 शॉर्ट लिस्टेड है, मैं सोच रहा हूँ कम से कम 50-60 तो लेके जाएगी। तो यहाँ से हमारे पैकेज में क्वांटम जंप आएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, राइट। सर ये सारे सीटीसी हैं जो आप दिखा रहे हो। हाँ, पहले हम सीटीसी की बात करते हैं। जो भी सर ये अमेज़न इंटर्न के लिए आई थी या फिर प्लेसमेंट के लिए, मतलब पीपीओ मिला था बाद में? अमेजॉन नहीं, इसी तरह से आती है। अमेजॉन एसडी जो भी आई है वो आपकी इंटर्नशिप के लिए है, ठीक है। इंटर्नशिप में भी ये आपको अच्छा पैसा देते हैं और उसके बाद फिर पीपीओ मिल जाता है जनरली, अगर आपने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। देखो, अगर आप परफॉर्म नहीं किए तो आपको प्लेसमेंट ऑफर भी मिल गया तो उसके बाद कंपनी 1 यूनिट लगाती है निकालने में। और लेकिन कंपनी को अगर ये समझ में आ गया कि ये बच्चा हमारे काम का है तो फिर उसको क्यों छोड़ेगी। तो सर ये इंटर्नशिप कितने महीने की होती है? ये जुलाई में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। मान लिया अभी देखो ना, जो 2021 बैच की बात करूं, 2021 बैच में बच्चा अभी मान लिया दिसंबर तक प्लेस हो गया, ये जनवरी से और जून तक इसकी इंटर्नशिप चलेगी 6 महीने, ठीक है। और 1 जुलाई से ज्वाइनिंग देगा। इसमें मुझे लगता है कि 50,000 रुपए करीब का पर मंथ स्टाइपेंड इसमें मिलता है, या 65,000 पर मंथ, ठीक है। ये 2021 का सिनेरियो है। अभी भाई 10 कंपनीज और हैं जो जिनका भी, रिवेगो है और डेफोडिल है और बहुत सारी कंपनीज है जिनका भी बचा हुआ है, 10 कंपनीज का। और बहुत सारी कंपनीज पाइपलाइन में लगी हुई हैं, अच्छी कंपनीज भी हैं। AWS का भी चल रहा है, AWS का 19 लाख का पैकेज है। सर ये एक डाउट था सर, AWS और Amazon की हायरिंग में फर्क क्या है सर? बहुत फर्क है सर। क्या बता दो। ये जो है ना, ये पूरा आपका ये क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट पे होता है भाई, AWS। हाँ। ओके। इसका पैकेज 19 लाख है, इसका पैकेज 30 LPA है। इसमें आपकी कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, DS प्लस एल्गो, और बाकी चीजें प्रोजेक्ट इंटर्नशिप थोड़ी रहती है, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें आपकी जो कोर है ना, कोर में आप समझो कि DBMS सबसे ज्यादा, नेटवर्किंग, CNOS, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सर एक बात पूछनी थी, AWS में पहले नेटवर्किंग के अलावा बहुत कुछ होता था, बट इस बार जो उन्होंने एग्जाम लिया पूरा नेटवर्किंग बेस्ड लिया है। इस बार तो आया चेंज, इस बार तो वो भी अगली बार
सर प्योर नेटवर्किंग लिया है इन्होंने, तो अगली बार भी प्योर नेटवर्किंग होगा, क्योंकि क्या कह सकते हैं? खाली नेटवर्किंग पूछा है। क्या कह सकते हैं बताऊंगा। मतलब जैसे पिछली बार देखो, ओएस और क्लाउड बेस्ड भी होता था, इस बार खाली नेटवर्किंग करा है इन्होंने। क्लाउड तो नहीं पूछते AWS में फ्रेशर में, नेटवर्किंग, OS और DBMS 3 चीजें पूछते थे। इस बार 90% CN है ना, इस बार 90% CN है। और इनका जो इंटरव्यू होता है ना, वो इंटरव्यू 2 होते हैं पिछले साल तक, तो OS का और नेटवर्किंग का। ठीक है, 4 इंटरव्यू होते हैं बेसिकली इसमें। एक पहला OS का होता है, दूसरा नेटवर्किंग का होता है, तीसरा फिर एक कंबाइंड टेक्निकल होता है, मैनेजरियल राउंड जिसको बोलते हैं, और फिर एक HR इंटरव्यू होता है। 1 घंटे के 4 इंटरव्यू होते हैं। तो OS भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, हो सकता है इस बार कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो नेटवर्क वाली, है ना, बट OS के बिना नेटवर्क भी नहीं समझ सकते, नेटवर्क के बिना OS नहीं समझ सकते। यस सर। और अगले साल क्या पूछेगी कंपनी, बिल्कुल इस बार नया पैटर्न है। इस बार एक नया राउंड है जॉब सिमुलेशन वाला। यस सर, वो क्या बोलते हैं, पूछते हैं कि इस सिनेरियो में तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। तो जॉब सिमुलेशन राउंड में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें अभी पता लगा है, तो उस तरह से हम आपको देखते हैं। लेकिन अगले साल कंपनी ने फिर पैटर्न चेंज कर दिया तो क्या करेंगे। तो ये तीन चीजें AWS में मान के चलो कि DBMS, CN और OS। CN की प्रायोरिटी टॉप पे है, OS की दूसरे नंबर पे है, और DBMS की तीसरे नंबर पे है। राइट सर AWS भी इंटर्नशिप के बेसिस पे लेती है या डायरेक्ट जॉब ऑफर करती है? नहीं, देखो, जब तक आपकी डिग्री नहीं हुई, ठीक है ना, लेकिन इनकी जो जॉब कंफर्म रहती है। और डिग्री नहीं हुई तब तक तो जो भी कंपनी देगी आपको इंटर्नशिप ही देगी। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज आस्क जनवरी ज्वाइनिंग। वो चाहते हैं कि हमें मिल जाए बच्चा, सस्ते में मिल जाए, 6 महीने काम करके टेस्ट कर लें, है ना, और काम का है तो फिर उसको आगे बढ़ाएं। ओके सर। This was the total selection for 2020 बैच ब्रांच वाइज। CSC में मल्टीपल ऑफर 132 थे, IT में 70 थे, EC में 98, EEE में 15। ये सिंगल ऑफर्स थे, ठीक है। तो उसके बाद अगला है नंबर ऑफ कंपनीज। टोटल कंपनीज जो विजिट हुई वो 95 थी, उसमें से 85 कंपनीज ने CSC को चांस दिया। 84 कंपनीज कॉमन थी, कंपनी सब एक ही कंपनी थी जिसे CSC मांगा सिर्फ। और बाकी ये कंपनीज IT बेस्ड कंपनीज ही थी ज्यादातर। इसमें से कुछ कोर कंपनीज थी, मे बी 6 to 8, जो कि कोर थी बिल्कुल, जिन्हें CSC IT नहीं चाहिए था। बाकी IT कंपनीज थी which allowed EC and EEE also, right? So these two things are very crucial। और मेरा मानना यह है कि भाई आज के सिनेरियो में जॉब्स IT में है, ठीक है। अगले साल क्या होगा वो हम देख सकते हैं, 4 साल बाद क्या होगा, हो सकता है उल्टा हो जाए, जॉब EC EEE में ज्यादा हो, बट आज की तारीख में जॉब CSC और IT कंपनीज में है। बट सिल्वर लाइनिंग इज दिस कि some companies around 50% companies allow EC and around 30% companies allow EEE also. But for that purpose, they expect a certain amount of knowledge of coding and core CSC. Not much, but कुछ सब्जेक्ट है जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। Is it clear? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलें आगे चलें फिर। Yes, sir. So basically companies can be divided into various categories. One is product based company, another is service based, data science, oblique consultants, then
we have startups, old and new, right? So there is a wide difference between the packages of these company, package, selection process, skill set, बहुत डिफरेंस है इसमें, राइट? तो अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करूं तो 8 लाख से ऊपर शुरू होता है पैकेज। 8 LPA तो रहता ही रहता है जनरली। कोई कोई कंपनी है जो 6 से शुरू करती है, बट 6 LPA प्लस जनरली 8 LPA प्लस रहता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज का पैकेज जो है 3.5 से शुरू होकर और 4.5 पे खत्म हो जाता है। डेटा साइंस और कंसल्टेंसी का पैकेज अच्छा हो सकता है। दिस कैन बी 8 to 20 lakhs, 25 lakhs भी हो सकता है, जैसे गोल्डमैन सैक्स है। और फिर आपके स्टार्टअप आते हैं, ओल्ड एंड न्यू। न्यू स्टार्टअप्स भी अच्छा पे करते हैं, 6 LPA प्लस पे कर देते हैं, और ओल्ड 6 to 12-15 LPA तक चले जाते हैं। कैटेगराइजेशन क्लियर है आपको? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबे, ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट डेवलप करती हैं। एडोबे का अपना प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्रोडक्ट है, गूगल अपना प्रोडक्ट ला रहा है, राइट? हुंकारा भरते रहे ना भाई। यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरी है सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, है ना, कैपजेमिनी। कॉग्निजेंट का टेस्ट आज चल रहा है, AWS का टेस्ट कल था, कॉग्निजेंट का आज चल रहा है, ठीक है? तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये दूसरी कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। मेरी फैक्ट्री है कार बनाने की, या मेरा बैंक है, मैं कहूंगा भैया मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना के दो, मैंने TCS को दे दिया ठेका, भैया मेरा सॉफ्टवेयर बनाना, मेंटेन करना, अपग्रेड करना, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी, राइट? TCS के हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे टैली करके इसका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आता है, लेकिन जनरली ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। इन कंपनीज को बहुत होशियार बच्चे नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी आप एवरेज हैं, थोड़ा सा आपने मेहनत की भी है, तो यू कैन इजीली क्रैक सर्विस बेस्ड कंपनी। आप BPIT में आए हैं, एक IP यूनिवर्सिटी की रैंक लेके आए हैं, जेई मेन से तो नहीं आए ना आप लोग? IP यूनिवर्सिटी रैंक है ना? यस सर। 2019 वाला बैच है जो जेई में। Yes, sir. यस सर। एक रैंक लेके आए हैं, डिसेंट रैंक लेके आए हैं, एंड यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका एप्टीट्यूड थोड़ा सा ब्रश अप कर लें चीजों को, तो यू कैन इजीली क्रैक। और इसमें हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज ओपन हो गई हैं। TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सब हमारे यहाँ आती हैं, है ना? HCL से भी बात चल रही है, अभी पिछले साल नहीं थी, इस साल बात चल रही है HCL से, और भी जो कंपनीज हैं उन सबको हम कैटर करते हैं, ठीक है? बस थोड़ा सा फर्क ये आया है। अच्छा, पहले कंपनीज की बात कर लेते हैं। तीसरा है डेटा साइंस, जैसे जेडएस एसोसिएट्स की मैं बात कर रहा था, ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, और इसका जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल अलग तरह का है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपका DSLGO इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोर और प्रोजेक्ट्स, बस ये 3 चीजें पूछते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी में आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल्स, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब पूछते हैं। डेटा साइंस में DBMS इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका लॉजिक, एप्टीट्यूड, और इंटरव्यू होता है इनका केस स्टडी बेस्ड। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मेरा क्वेश्चन है हाँ कि जैसे कोई कंपनी है, अगर उसका हमने जो बेसिक वो एप्टी होता है और अगर हमने वो क्लियर कर लिया है, हाँ, तो उसके बाद जैसे अगर कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा देखे जाते हैं, या आपका उससे आपसे ज्यादा वो बात करी जाती है टेक्निकल? दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अगर आपकी DSLGO बढ़िया है ना, हाँ जी, और आप मतलब लॉजिक आपका जबरदस्त है,
आप चाहे अकलाते भी हो, चाहे आप हिंदी में बोलो, उनकी उनसे उन्हें इससे मतलब नहीं है। बट इन सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड कंसल्टेंसी कंपनी इट मैटर्स। स्टार्टअप में मैटर नहीं करेगा। ऑलराइट। राइट। हाँ जी। बट मैं ये बताऊं कि जितने आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप टॉप 25% में आते हो एज फार एज कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसर्न। उस पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपकी पहले से ही अच्छी है। चलिए, अब है स्टार्टअप्स। ये स्टार्टअप्स बेसिकली मोबाइल डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट, इस पे इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। ठीक है, मोब डेव एंड वेब डेव, राइट। अच्छा, अब एक चीज मैं जो और बताना चाह रहा था और वो ये है, क्या हो गया ये? इसको अगर मैं, चलो रहने दो इसको, ये बाद में भी काम आ जाएगी, स्लाइड भेज देंगे बच्चों को। ठीक है, तो मास रिक्रूटर का मैं आपको डेटा बता रहा हूं कि हमारे जो मास रिक्रूटर थे 174 ऑफर्स आउट ऑफ 300 ऑफर्स, 174 ऑफर्स मास रिक्रूटर से थे। 1 2 3 4 5 6 7 कंपनी से 174 ऑफर्स, और बाकी जो आपकी 88 कंपनीज थी उससे आपके 135 ऑफर्स। ठीक है, तो ये समझ के चलो जो बाकी कंपनीज हैं वो 2 3 4 से ज्यादा बच्चे नहीं लेती, 0 भी लेके जाती। तो मास रिक्रूटर्स आर द बेस्ट चांसेस स्पेशली फॉर द ECE एंड ट्रिपल ई स्टूडेंट्स। ठीक है, बट अगर आप डिटरमिन्ड हैं, आप शुरू से प्लान्ड है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या स्टार्टअप कंपनी में जाना है, तो यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स। वो कहें कि नहीं हम CSC का बच्चा छोड़ेंगे, इस बच्चे को लेके जाएंगे क्योंकि इसकी स्किल जबरदस्त है, राइट। अब ये ब्रांच वाइज है सिलेक्शन, ये 2020 का है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये ट्रिपल ई के सिलेक्शन यहाँ पे 0 थे। नहीं, ये नहीं है, ये 2019 का है डेटा एक्चुअली। यहाँ पे कुछ सिलेक्शन TCS में भी हुए हैं, ट्रिपल ई में। ये डेटा ना 2019 का है गलती से। यहाँ पे कुछ सिलेक्शन हुए हैं, TCS में 2 सिलेक्शन हुए हैं, इन्फोसिस में 2-3 सिलेक्शन हुए हैं, और विप्रो में 2 सिलेक्शन हुए। 6-7 सिलेक्शन 2019 में 0 था मास रिक्रूटर में, 2020 में 7 सिलेक्शंस हैं, और 2021 में हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कम से कम 15 से 20 सिलेक्शंस होंगे, और 2022 आपके बैच से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 20 से 25 सिलेक्शंस मास रिक्रूटर में ट्रिपल ई से होने चाहिए, राइट। EC ने भी 2021 में सिग्निफिकेंट जंप किया। आई एम सॉरी दैट डेटा इज बेसिकली 2019 का रह गया, मैंने अपडेट तो किया था बट पता नहीं कैसे ये स्लाइड रह गई। और EC ने भी सिग्निफिकेंट जंप किया है, 47 नहीं है, करीब 70 करीब सिलेक्शंस हैं मास रिक्रूटर में। So EC and triple E students have a good chance to be placed in these companies: TCS, Infosys, Wipro, Cognizant, right? Any doubts? Any questions? नो सर। सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं मैं। एक्चुअली थोड़ा चेंज आया है 1-2 साल में, तो वो चेंज ये है कि कंपनीज ने खासतौर से TCS एंड Infosys, इन्होंने मल्टीपल सिलेक्शन के तरीके चलाए हैं। जैसे Infosys का एक हैक विद इन्फी आता है, एक इनका आता है InfyTQ, और एक होता है नॉर्मल कैंपस सिलेक्शन। TCS का भी एक कोड वीटा आता है और एक नॉर्मल कैंपस में जो कराते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, पहले ये सब कंपनीज 3.5 से 4, 4.5 तक देती थी। अब इन्होंने कहा नहीं, जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम ज्यादा देंगे। इन्फोसिस में अब 3 है, एक है सिस्टम इंजीनियर जिसको 3 जो भी पैकेज मिलता है 6 या 7 हो गया अब वो।
एक है इनका सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट, जिसको 5 लाख का पैकेज मिलता है, और एक है पावर प्रोग्रामर जिसको 8 लाख का पैकेज मिलता है। ओके, ये 5 और 8 लाख का पैकेज सिर्फ हैक विद इन्फी और इन्फी टीक्यू से मिलेगा। नॉर्मल कैंपस से जो आपको जॉब मिलेगी वो यही मिलेगी, 3.6 वाली। इससे 3.6 भी मिल सकती है, तीनों मिल सकती है। तो हैक विद इन्फी बेसिकली क्या है, इन्फोसिस एक हैकेथलॉन कराती है, उसकी डेट आपके बैच के लिए आने वाली होगी। उसमें आप टीम बनाओ, टीम बना के पार्टिसिपेट करो, और पार्टिसिपेट करके जो फाइनल राउंड में पहुंचते हैं उनका इंटरव्यू होता है। नेशनल लेवल पे जो फाइनल राउंड में पहुंचते हैं उनका इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू में जब पहुंचते हैं तो फिर ये इन तीनों में से किसी पे भी जॉब वो पा सकते हैं। इज इट क्लियर? हैक विद इन्फी? Yes, sir. Can I expect a large number of participation this time from 2022 batch? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है। तो दूसरा है इन्फीटीक्यू। इन्फीटीक्यू में इन्फोसिस ने क्या किया हुआ है, अपना ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। यू हैव टू रजिस्टर फॉर दैट। मेरे ख्याल से आपके पास आया भी होगा, ये पहले नहीं आया तो अभी देखते हैं, शुरू होने वाला होगा। तो ये आपको सर्टिफिकेशन है, आपको उनके वीडियोस देखने हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशन देना है, और वो सर्टिफिकेशन में अगर आप एक सर्टेन परसेंटेज मार्क्स आप पा लेते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो वीडियोस हैं बहुत सारे, तरह तरह के सर्टिफिकेशंस हैं इनके, उसको आपको देखना होगा। वो वीडियोस को देख के फिर एग्जाम क्लियर करना होगा। एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो डायरेक्ट सीधे सीधे आपको इंटरव्यू में अलाउ करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं, जो नॉर्मल कैंपस वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो टीसीएस में आपका रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड, वर्बल, कोडिंग बहुत ज्यादा नहीं आती, प्रोग्रामिंग लॉजिक पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन कोडिंग के रहते हैं। ईमेल राइटिंग भी आने लगा। एक्चुअली जॉब लगने के बाद शुरू के 2-3 साल 4 साल आदमी कोडिंग करता है, बट उसके बाद तो एक्सेल शीट बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, ईमेल लिखना, है ना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हो जाते हैं। एक कोडिंग टेस्ट रहता है टीसीएस में। रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड, वर्बल, लॉजिक, ईमेल राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। कोडिंग टेस्ट एक रहता है। उसके बाद में इंटरव्यू में C++, जावा के बेसिक्स पूछते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाते। और बेसिक्स ऑफ योर ब्रांच, आपकी ब्रांच के अगर आप ईसी से हैं तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब आता है कि नहीं आता। अगर आप ट्रिपल ई से हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स और बेसिक आपको आता है कि नहीं आता। वो कहते हैं कि भैया आपके पास लॉजिक है, एप्टीट्यूड है, कोडिंग तो हम सिखा देंगे, और जिस प्लेटफॉर्म पे काम प्रोजेक्ट देना होगा उस प्लेटफॉर्म को हम सिखा लेंगे, बट यू मस्ट हैव ए जील टू लर्न। राइट? मेकिंग सेंस? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है 60% थ्रू आउट, नो बैकलॉग, गैप अप टू 2 इयर्स। गैप को भी 2 ईयर से ज्यादा गैप को ये मना करते हैं, होगा नहीं किसी का है 2 साल से ज्यादा गैप। किसी का गैप 2 साल से ज्यादा है क्या? No, sir. ठीक है। इन्फोसिस का प्रोसेस, टेस्ट में एप्टीट्यूड, वर्बल, रीजनिंग, इंटरव्यू में C++, जावा के बेसिक्स पूछते हैं, और योर ब्रांच। इसमें कोडिंग का और इन्होंने कम कर दिया। टीसीएस में कोडिंग कुछ है, कोडिंग राउंड भी इन्होंने शुरू कर दिया, पहले नहीं होता था, लेकिन इन्फोसिस में कोडिंग बिल्कुल नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू और मैनेजरल राउंड 10-10 मिनट के इंटरव्यू होते हैं, बहुत आसान होते हैं। एक बार आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, आपका एटीट्यूड ठीक है, एटीट्यूड चेक करते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत जानकारी है, थोड़ी कोडिंग जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 65% थ्रू आउट, नो बैकलॉग। राइट? डाउट था। हाँ,
सर जो आप बेसिक्स ऑफ आवर ब्रांच कह रहे हैं सर, CSE-IT में मतलब खाली कोडिंग ही पूछते हैं बेसिक्स में या कुछ और भी पूछते हैं? देखो कोर में ना आपको OS, नेटवर्किंग, DBMS, ठीक है, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है सर ओप्स, थोड़ी सी सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन आपके यहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा, बट ये सिस्टम डिजाइन पता हो तो दैट इज अ वेरी एडिशनल थिंग। ये आपको अलग से आपके यहाँ कोर्स होना चाहिए, ये नहीं है, बट इसका थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख के यू कैन गेट दिस आल्सो। बट कई बार कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी चले जाते हैं, बट ये तो बेसिक्स हैं ही। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जोर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इतना नहीं पूछते, फिर भी थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और अपनी जब मैं दूसरी ब्रांच की बात कर रहा हूँ तो वो जनरली आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, और 2-3 सब्जेक्ट तैयार करके रखो, तो उसमें अगर आप कर पाओगे तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। इज इट क्लियर? यस सर। विप्रो का प्रोसेस है ये, रिटन टेस्ट है, क्वांट वर्बल रीजनिंग आएगा, एक इसमें ऐसे भी आता है, एक कोडिंग टेस्ट होता है, विप्रो ने अभी शुरू किया 2 साल से कोडिंग टेस्ट। इंटरव्यू में C++, जावा, एडा के बेसिक्स, एडा भी पूछ लेते हैं। एडा मींस एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस, राइट? यस सर। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना आपकी DS प्लस एल्गो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे आप CSC IT के हैं या फिर आप EC EEE के हैं। बट ये है कि अगर आपको सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है तो आप इसको टॉप लेवल से पढ़ लें, एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे, और अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो आपको डीप लेवल में जाना पड़ेगा, ठीक है। 65% थ्रू आउट, नो बैकलॉग। ये फिर आपका कॉग्निजेंट का आ गया, रिटन टेस्ट है, एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग, C++, जावा, DBMS, OS, बेसिक्स ऑफ योर ब्रांच। एनी अदर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैज जॉइंड? मुग्धा मैम, मोनिका कौशिक मैम? यस सर, आई एम देयर सर। अच्छा मुग्धा मैम आप हैं, ठीक है। हाँ जी सर। और कोई HOD भी आए क्या? I would like to welcome all the placement coordinators and all the HODs on behalf of training and placement, sir. Thank you for sparing your time. Right. So this is about the Cognizant. Now we move ahead. High package companies जो हमारे यहाँ आ रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। Amazon SDE ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर कोडिंग राउंड भी हो सकता है, फिर टेक्निकल इंटरव्यू एंड पर्सनल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के मल्टीपल राउंड्स होते हैं, एक राउंड से काम नहीं चलेगा इसमें। ये कौन है? आयुष भारद्वाज। एक मिनट, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स। ठीक है, अब कर ले बेटा जो करना है। एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के साथ पंगा लोगे ना, ये मैं बता दूं, हम बहुत रूथलेस हैं। जितने हम सपोर्टिव हैं उतने ही हम रूथलेस हैं। अपने सीनियर बैच से पूछना, रो रहे हैं कितने जिन्होंने हमारी गाइडलाइंस और नहीं मानी। बैन 1 मिनट में प्लेसमेंट से बैन करते हैं, 1 मिनट में, टाइम नहीं लगाते बिल्कुल भी। जितना हम सपोर्ट करते हैं उतना ही फिर हम रूथलेसली डिसीजन लेते हैं, तो सुधर जाओ। सो मल्टीपल राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, कम से कम 3 राउंड टेक्निकल होंगे। एक आपका पर्सनल राउंड होता है, फिर AWS में जैसे बताया कि भाई ऑनलाइन टेस्ट होता है, फिर इसमें अब जॉब चेंज कर दिया इस बार से इन्होंने जॉब सिमुलेशन राउंड है। फिर आपका जो टेक्निकल राउंड है वो पूरा
आपका CN पे एक्सक्यूज मी सर, यस। सर इस राउंड में क्या होता है जॉब सिमुलेशन में? जॉब सिमुलेशन में बच्चे बहुत ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता लगा, हमने फीडबैक लिया है आपके सीनियर बैच से, तो उनका कहना यह है कि आपको एक सिचुएशन में दे दिया जाएगा कि आपको ये जॉब दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, ठीक है, आपको ये करना है डेडलाइन में, इधर से आपके पास बॉस की मेल आएगी, इधर से आपके पास कुलीग की मेल आएगी। कौन बोल रहा था, किसका क्वेश्चन था ये? सर शिवम गोयल। हाँ, तो शिवम मान लिया, मैं तुम्हें मान के चलता हूँ, कंपनी ने तुम्हें एक जॉब दिया कि भाई ये जॉब करना है तुम्हें शाम तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक बॉस की मेल आ जाएगी, नहीं यू हैव टू, ये एक एडिशनल जॉब है, इसको भी करो, या फिर इधर से तुम्हारे कुलीग की मेल लगी, यार आई नीड योर हेल्प। तो उस सिचुएशन में तुम किस तरह से रिएक्ट करते हो, that they want to know, right? ओके सर। हालांकि जब हो जाएगा पूरा, अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे सीनियर बैच को, हमने तो फीडबैक थोड़ा लिया है। Hello? What we do, we ask the students who have gone through this process, entire selection process, to record their experiences on the Collect Pod. एक्चुअली कैलेक्स पॉड एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपका भी हम जल्दी से बनवा देंगे एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड, और सब प्लेसमेंट एक्टिविटी इसी से चलती है। सर वैसे जॉब सिमुलेशन मैंने दिया था अभी, ये आसान था, इसमें मतलब ये बताना होता है कि कौन सा मेथड सबसे एफिशिएंट होता है, सबसे कम कौन सा होता है, और मतलब वही है कि आपने AWS अप्लाई किया था क्या? अप्लाई नहीं किया था, बट एक और वो है, एक सिमुलेटर होता है, वहाँ पे सारे टेस्ट आ जाते हैं जो भी हो रहे होते हैं, तो जो हो गया था वो वहाँ पे आ गया था, मैं दे दिया। Can you share the link in the chat? सर एक सेकंड बताता देखो, हूँ। एक तो कंपटीशन आपस में मत रखना कभी भी, कंपटीशन 3 लाख में रख, 3 लाख के साथ रखना, BPIT के बच्चों के साथ मत रखना। तो चैट में अगर लिंक हो तो चैट में लिंक डाल देना। ओके सर, अभी डाल दूंगा। सर वो गूगल फॉर्म भरना जरूरी है? कौन सा? जो शायद से आपने ग्रुप वगैरह में नहीं, भेजा था, अगर placement आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओके कूल। प्लेसमेंट नहीं चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है, हम ये मान के चलेंगे यू आर आउट ऑफ आवर एम्बिट। सर तो वो फॉर्म मैंने फिलअप करा था, पर स्टिल मेरा नाम आ रहा है डिफॉल्टर में, सो पर वो फॉर्म मैं फिर से फिल नहीं कर पा रहा हूँ, आ रहा है कि योर रिस्पांस हैव ऑलरेडी बीन सबमिटेड। तो हो गया होगा, गलती से आ गया होगा। ठीक है सर। कोई हेलो बात नहीं। सर। हाँ सर AWS का रिजल्ट कब तक आ जाएगा? AWS का रिजल्ट 1 वीक में इसका रिजल्ट आएगा, उसका टेस्ट का। उसके बाद 10 दिन देंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है, और उसका तो साथ के साथ फिर मतलब एक महीना मान के चलो, 15-20-22 दिन में, ठीक है। तो ये हमारी हाई पैकेज कंपनीज हैं, इनमें एफर्ट्स और नंबर ऑफ राउंड्स और आपकी स्किल सेट रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैकेज। कोई कंपनी अगर आपको 30 लाख या 40 लाख या 50 लाख दे रही है तो आपको अच्छे से जज करके देगी। कोई 3.5-4 लाख में तो कहती कोई बात नहीं। सर एयरबस के अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं? बेटा एयरबस का मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, पूछ के बता दूंगा। रिटन टेस्ट है, GD जिस बच्ची का हुआ है मैं उससे पूछ के बता दूंगा तुम्हें। और सर लीडो थोड़ा सा मार्केटिंग साइड पे था, तो इसमें ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। इसमें टेक्निकल बिल्कुल नहीं है, मतलब IT के हिसाब से कुछ। हाँ, ऐसे एक बायजूस आती है, बायजूस में 10 लाख का पैकेज है, उसमें भी GD और पर्सनल इंटरव्यू वगैरह रहता है। वो मैंने इसलिए लिखा, पिछली बार 0 सिलेक्शन था, उससे पहले हमारे 6 सिलेक्शन थे। बायजूस 10 LPA का पैकेज है, 2019 में 6 सिलेक्शन थे, अनफॉर्चुनेटली 2020 में 0 सिलेक्शन हुए, पता नहीं क्या रीजन रहा, मतलब आई थी हमारे यहाँ। सर बायजूस किस प्रोफाइल के लिए आती है? मार्केटिंग प्रोफाइल रहता है, BD है। हाँ, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स, और उसमें टेक्निकल बिल्कुल नहीं रहता, उसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है और एक टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग, बस कुछ नहीं, ठीक है। एक वीडियो की ऐसी तैसी कर दी। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, फिर दोबारा खोलता हूँ, then it should be okay, I think. है ना?
तो हम यहाँ पे थे, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। तो ये मेरी हाई पैकेज कंपनी थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। 10th की परसेंटेज 60% से 90% तक रहती है कंपनीज की, 12th की 60% से 90%। एक कंपनी आती है, मेरा दिमाग से नाम उतर गया, जो कहती है कि आई नीड ओनली 90% प्लस, राइट। बैकलॉग, जीरो बैकलॉग मोस्ट डिजायरेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यह है कि क्लियर योर बैकलॉग्स एज सून एज पॉसिबल। एक्सक्यूज मी सर। यस सर अभी स्टार्टिंग में जब आपने दिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 365 थे और आपकी साइड से मतलब आपने जो बच्चों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रखा था वो टोटल 265 हुए थे। हाँ, तो उस टाइम पे आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था कि 12th का 65%। हाँ। तो सर जिन स्टूडेंट्स का 65 से नीचे है, लेट्स से 60 से ऊपर है और 65 से कम है, तो उनका कुछ होता है? कुछ कंपनीज बच्चे अलाउ करती हैं उनको, कुछ कंपनीज है जो अलाउ करती हैं। और सर आप अलाउ करते तो हैं? सर आप नहीं, देखो हम तो ये चाहते हैं हमारा हर बच्चा हर कंपनी में बैठे, ठीक है। हम तो हमारी तरफ से तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, हम तो आपके साइड हैं। बट जो एचआर वहां पे बैठा है वो कंपनी की साइड है, और एचआर डिक्टेट करता है टर्म, हम डिक्टेट नहीं करते। हम कोशिश करते हैं जैसे AWS है, राइट। AWS का पूरा कोऑर्डिनेशन BPIT कर रहा है। जितनी IP यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं सब BPIT के थ्रू हो रहे हैं। और सब कॉलेज में आप पता कर लेना कि CSC, IT और EC बस 3 ब्रांचेस अलाउड हैं। BPIT की CSC, IT और EC और साथ में EEE भी अलाउड है। This because we have good relation with the HR and Sanjay sir, ये all this is because Mr. Sanjay Dureja वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करके चलते हैं, तो हमारी EEE भी यहाँ पे एलिजिबल है। और कॉलेजेस में EEE एलिजिबल नहीं है। 2,500। हाँ सर आप एग्रीड परसेंटेज लेती है कंपनी या फिर जो नॉर्मल वो क्रेडिट परसेंटेज लेती है? नॉर्मल परसेंटेज की बात, जिसमें बेनिफिट हो वो चला देते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट हम हमेशा स्टूडेंट को देने की कोशिश करते हैं। ओके सर। अच्छा, कुछ कंपनीज 1 या 2 बैकलॉग अलाउ करती हैं कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिस शुड बी क्लियर, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देयर आर सर्टेन असेसमेंट टेस्ट्स, राइट। हैव यू हर्ड, एनीवन ऑफ यू हर्ड अबाउट द CoCubes, MCAT एंड ELITMUS? यस सर। तो ये टेस्ट बेसिकली 2 पर्पस सॉल्व करते हैं। एक तो ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को चेक करते हैं, हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, व्हाट आर योर वीकनेसेस, ठीक है। और तीसरी चीज बेंचमार्किंग, वेयर डू यू स्टैंड एट द नेशनल लेवल। 3 चीजें तो ये हो गई। और अगर इनमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो ये कंपनीज भी गुड स्कोर पे अच्छी कंपनीज आती है। जैसे CoCube से बड़ी अच्छी कंपनी आती है, HSBC 12 लाख का पैकेज देती है, वो इस पे आती है। और बहुत सारी कंपनीज हैं, एडोबी की इंटर्नशिप इसके थ्रू आ रही है इस बार CoCube की। आपको पास आया होगा एडोबी का इंटर्नशिप का फीमेल के लिए? सर बट वो खाली वो फीमेल उनके लिए नहीं था। हाँ वही तो कह रहा हूँ, फीमेल के सर only for girls है ना? हाँ, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए तो पूछ रहा हूँ मैं। दैट इज ओनली थ्रू CoCubes। तो ये 3 है, CoCubes, MCAT और ELITMUS। तो ये आप अगर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी में इसमें CoCubes को देता हूँ, नंबर 2 ELITMUS को देता हूँ, नंबर 3 MCAT को देता हूँ। लेकिन तीनों देंगे तो और अच्छा रहेगा। सर एक बार थोड़ा डिटेल में बताओ सर, होता क्या है सब, इनमें क्या मतलब? बेटा ये ना आपको जज करते हैं बेस्ड अपॉन वेरियस क्राइटेरिया। जैसे एक सेक्शन इसमें एप्टीट्यूड का होगा, एक रीजनिंग का होगा, एक आपका उसका होगा वर्बल, एक आपका कोडिंग का होगा, एक आपका कोर का होगा,
और 1-2 सेक्शन और रहते हैं, 6-7 सेक्शन इनमें रहते हैं। इनके बेसिस पे ये आपको एक टेस्ट देना होता है। ये टेस्ट आप 3 बार दे सकते हो साल में। ओके। एक बार पे करके ये कुछ पैसा लेते हैं, 3 times you can appear, और based upon this score they have tie up with hundreds of companies, each 3 of them. सर तो फिर अगर ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो? नहीं, ये क्या करते हैं, फिर ये ओपन करेंगे। जैसे इनके पास एक कंपनी है HSBC का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें वैकेंसी निकाल दी, तो ये जो बच्चा को क्यूब दिया होगा उसके पास मेल आएगी, हम बताते हैं, हमारे थ्रू ही आता है, तो हम बताते हैं कि भाई ये जिस बच्चे का कोक्यूब स्कोर 600 प्लस है और वो इसमें बैठ सकता है, तो वो अप्लाई करेगा। उसके बाद फिर रिटन टेस्ट की जरूरत नहीं होती, सीधे इंटरव्यू होता है, क्योंकि रिटन टेस्ट वो इसी को मान लेते हैं, राइट। तो ओके सर, इस तरह से ही चलता है, फिर आप इसको इम्प्रूव भी कर सकते हो अपना। सर तो कौन कौन सी कंपनी से आज ये एफिलिएटेड है? सर एक चीज ये थी, कोक्यूब से जो एग्जाम्स हैं ये किस टाइम पीरियड में होते हैं? मतलब जैसे आप कह रहे हो 1 अगस्त से शुरू होगा, तो उसके बाद होते हैं या उससे पहले हो जाते हैं? नहीं, ये ना देखो, ये हमारे हाथ में रहता है। अब मेरे ख्याल से अगर ये कॉलेज बंद ना होता तो हम शायद अभी तक करा देते, बट मुझे लगता है कि हम जल्दी ही कराएंगे। हम ओपन करेंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे बच्चे वो रजिस्टर करेंगे, उनका एग्जाम हम कराएंगे। एक एग्जाम अब करा देते हैं, अभी क्या हो गया, अक्टूबर, ठीक है। एक एग्जाम हम आपका मई या जून में करा देंगे, आपको यहाँ पता लग जाएगा आपकी कमजोरियां क्या है। एक चूंकि उसी 3 बार देते हैं ना, एक टाइम पे करके 3 टाइम देना होता है। एक फिर हम आपका अगले नवंबर-दिसंबर में करा देते हैं, तो ये 1 साल तक वैलिड रहता है स्कोर। अच्छा, 1 साल तक वैलिड स्कोर रहता है। मतलब आउट बाहर नहीं होता है, आपके थ्रू, कॉलेज के थ्रू ही होगा मतलब? नहीं, कॉलेज से बाहर भी होता है। कॉलेज से बाहर ज्यादा पे करना होता है, क्योंकि यहाँ पे बल्क में बच्चे मिल जाते हैं। कॉलेज के बाहर अगर यहाँ 2000 का है तो कॉलेज में, मुझे सही रेट सही नहीं पता है, सब संजय सर देखते हैं सर, लेकिन कॉलेज में हो सकता है आपको 1200 या 1500 में हो जाए, वो बल्क डिस्काउंट मिल जाए। ये ना सर थोड़ा मतलब, अगर जैसे एग्जाम अगर जून में है तो हमें जनवरी में या फरवरी में पता चल जाए एग्जाम है, तो प्रिपेयर करने का भी थोड़ा टाइम मिले, वो भी है ना? हाँ, वो तो है ही, वो सब तो बताएंगे हम फिर आपके हिसाब। एक बार जब आपने रजिस्टर कर लिया ना, उसके बाद तो फिर हमारे कहने से भी रख देते हैं कि सर इसको एग्जाम को इस टाइम पे रख लो, हमारे बच्चे इस टाइम चाहते हैं, तो कॉलेज के साथ आपको ये भी मिल जाती है सुविधा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में जरूर सोचना और अपने सीनियर से लेना इसका वो। अब मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द मेजर थिंग्स। तो एक तो चीज ये है कि द सिलेक्शन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डिफरेंट कंपनीज इज डिफरेंट, राइट। अवॉइड बैकलॉग्स। अब किसी की बैकलॉग अगर अभी है तो उसे जितनी जल्दी क्लियर कर सकते हो वो क्लियर करनी है। और भैया सबसे खतरनाक बैकलॉग 5th, 6th, 7th और 8th सेमेस्टर की होती है, ये आपका कैरियर डिरेल कर सकती है। डिरेल योर कैरियर। ठीक है, तो अगर कोई बैकलॉग आपकी 1st, 2nd, 3rd, 4th में है तो इसको क्लियर करो। 3rd सेमेस्टर की इस बार क्लियर कर लो, 5th में, 1st और 3rd की, और 2nd एंड 4th की 6th में क्लियर कर लो। ठीक है, आपके सीनियर्स इतने परेशान हैं क्यों? क्योंकि जो 4th सेमेस्टर की बैक थी वो 6 में क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि बैकलॉग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ एंड वो उन कंपनीज में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। बैक का एग्जाम अब अक्टूबर में होगा, उसके बाद कब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसकी ग्रेविटी समझिए आपने बैकलॉग्स की? यस सर, यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, ट्राई टू इम्प्रूव योर बीटेक परसेंट। यू कैन नॉट इम्प्रूव 10th, 12th में तो कुछ कर नहीं सकते भाई, लेकिन बीटेक परसेंटेज अगर किसी की 63 है, 64 है तो उसको इम्प्रूव करके 65 प्लस करे। किसी की 68, 69 है तो उसको 70 प्लस लाने की कोशिश करे। कुछ कंपनी 70 प्लस मांगती हैं। ठीक है, किसी की 86, 87 है तो 90 प्लस लाने की कोशिश करे। एक आध कंपनी मांगती है तो कम से कम कुछ बच्चे बढ़ जाएं। द मेजर चंक ऑफ ऑफर्स कम्स फ्रॉम मास रिक्रूटर्स। तो हम बेसिकली, हमारी प्लेसमेंट पॉलिसी ये रहती है
कि अगर एक मास रिक्रूटर आपके पास है, मास रिक्रूटर का ऑफर है, तब भी हम आपको, मान लिया 3.5 से 4.5 है, तो हम 8, 6, 7, 8 लाख वाली कंपनी में हम आपको अलाउ करते हैं, है ना। और ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है हमारी पॉलिसी। तो एक मास रिक्रूटर का ऑफर तो सब ले लें तो अच्छा है। सर मीन्स अगर हमारे पास एक पैकेज है, हाँ, तो उससे हम डबल वाले में अप्लाई कर सकते हैं फिर? आइडियली तो यही पॉलिसी है, बट उसको भी हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊं अभी आपको, अभी जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि 3.5 से 4.5 हमने एक रेंज रखी हुई है, एक रेंज हमने 6+ रखी हुई है, एक रेंज हमने फिर 10+ रखी हुई है, और एक रेंज हमने 15+ रखी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास 3.5 से 4.5 का एक पैकेज है, दूसरी कंपनी में इसमें अलाउ नहीं करेंगे, 6+ वाली में आप अलाउ कर सकते हैं। आपके पास अगर 6+ वाला पैकेज है तो आप 6, 7, 8, 9 कंपनी में अलाउ नहीं है, आप 10+ कंपनी में अलाउड है। आपके पास 10+ का पैकेज है तो आप 15+ में अलाउड है। अभी फिलहाल ये है, बट आपके बैच में क्या होगा, कैसे होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन सिनेरियो। और ये भी हम रिलैक्स करते रहते हैं, स्ट्रिक्ट करते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है एवरी स्टूडेंट गेट्स ए जॉब। राइट। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है एवरेज पैकेज शुड बी मैक्सिमाइज्ड। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है नंबर ऑफ ऑफर्स। इसी प्रायोरिटी में है। मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि मेरे हर बच्चे के हाथ में एक जॉब है। अगर मेरे 50 बच्चों के हाथ में 30 लाख का पैकेज है और बाकी मेरे 300 बच्चे खाली बैठे हुए हैं, तो मैं उससे खुश तब होऊंगा जब मेरे 360 बच्चों के हाथ में चाहे 4 लाख का ही पैकेज है। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि एवरी स्टूडेंट्स गेट ए जॉब। राइट। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी ये है कि एवरेज पैकेज, और तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी मेरी है एवरेज नंबर ऑफ ऑफर्स, नंबर ऑफ ऑफर्स। स्टूडेंट की प्रायोरिटी ये होती है कि 3 लाख का भी ले लूं, 3.5 लाख का भी ले लूं, 4 लाख का भी ले लूं, 6 लाख का भी ले लूं, 7-8 जॉब हूं, दिखाऊं अपने शान से, देखो इतनी जॉब लग गए मेरे। बट एट द कॉस्ट ऑफ योर बैचमेट्स, एट द कॉस्ट ऑफ योर जूनियर्स, एट द कॉस्ट ऑफ द रेपुटेशन ऑफ कॉलेज। डोंट बी सो ग्रीडी। ये प्रॉब्लम फेस करने में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके सीनियर बैच के साथ, और हम धड़ाधड़ बैन कर रहे हैं जो नई पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। The company providing higher package have a tougher selection process and fewer selections. Infosys 45 लेके जाएगी, AWS 3 लेके जाएगी, Amazon SDE 1 या 2 ही लेके जाएगी। इसका 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, इसका 3 घंटे का इंटरव्यू होगा, इसका 6 घंटे का इंटरव्यू होगा। समझ रहे हो? जैसे जैसे पैकेज बढ़ता चला जाएगा, आपका इंटरव्यू का साइज और वो सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। गॉट इट? Yes, sir. For students, mass recruiters, especially EC, EEE are the best for getting an offer. इसके लिए क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल सब पूछते हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कोडिंग इज टेस्टेड बाय सम वाया ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोसेसेस। प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड कोडिंग की भी जरूरत पड़ती है। जीडी, मैनेजरल राउंड और टेक्निकल इंटरव्यू में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। How to improve your chances? Start preparing early. How many of you have started preparing for your placement season? Can you raise hands? किसने शुरू कर दिया है? छुपाओ मत, कुछ तो जरूर होंगे जिन्होंने शुरू किया होगा। प्लीज रेज हैंड्स। हाँ, यस, कौस्तुभ है, 3-4 है ना, अनिरुद्ध है, बघेश है, चलो वेरी गुड। बट फॉर अदर्स आल्सो मैं ये कहूंगा कि ये अभी लेट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप आज नहीं जागे, आज यू सी
today is October 18 and 1st of August. ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. You have exactly 10 months, 10.5 months. मेरा मानना यह है कि 1200 से 1500 घंटे की प्रिपरेशन चाहिए. और अगर मैं मान के चलूं कि आपके पास अभी 300 दिन है, 320 दिन मान लेते हैं, तो अब आप ये देख लीजिए कि जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे आपके नंबर ऑफ आवर्स पर डे बढ़ते चले जाएंगे. मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप सिर्फ जून और जुलाई में करना चाहते हैं, ठीक है ना. जून जुलाई में आपके पास 60 दिन है, 1200 से डिवाइड कर लो. 20 घंटे रोज पढ़ सकते हो क्या? कोई है महावीर ऐसा जो 20 घंटे रोज दे सकता है? नो सर. नहीं है ना. कितना दे सकते हैं? 4 से 5 घंटे. सर डिपेंड करता है पेपर कब है. नहीं, 60 दिन लगातार 20 घंटे दे सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है सर. नहीं दे सकते ना. अच्छा, एट मैक्स 10 to 12 आवर्स. मैं ये कह रहा हूँ अगर आप 1 जून को तैयारी शुरू करो, जून और जुलाई तो पूरा आपके पास रहेगा. देखो अगस्त में हम आपको सांस नहीं लेने देंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं. आप सोच लो अगस्त में मिल जाएगा, अगस्त में सांस नहीं लेने देंगे. आज इसका प्रोसेस, कल उसका प्रोसेस, परसों उसका प्रोसेस, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा. अपने सीनियर से पूछो सांस लेने का मौका मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा. तो आपके पास 30 जुलाई तक का टाइम हमने आपको फ्री छोड़ दिया. तो ये 1200 से 1500 घंटे, मैं अगर एवरेज भी मानूं 1350 घंटे, और कितना कंफर्टेबली कितना दे सकते हो? 5 घंटे ओनली फॉर प्लेसमेंट. यस सर. और इसमें भी वो दिन आएंगे जब एग्जाम होगा, जब इधर की चीजें होंगी, तो मैं इसको 4 ही मानता हूं. ठीक है, तो 4 किया 12 और 4 किया 12, 337 डेज बैठ रहे हैं आपके. और यहाँ पे भी 337 डेज बैठ रहे हैं, 335. ठीक है, जितना आप ये कम करते जाओगे डेज, उतने आपको ये 4 से बढ़ाना पड़ता चला जाएगा. इफ यू वांट इट. हाँ जी सर, तैयारी से आपका मतलब इन द सेंस मतलब हमें क्या कोर्स की चीजों को और पॉलिश करना है या अपनी स्किल डेवलप करनी है अलग अलग सेगमेंट में, जैसे डाटा साइंस हो गया? मैं आ जाता हूँ स्किल सेट पे आ जाता हूँ. स्किल सेट पे आ जाता हूँ थोड़ा सा. अभी तो कुछ मैंने बताया ना आपको क्या क्या स्किल चाहिए. हाँ, वो तो आपने मतलब वो सब्जेक्ट्स तो वगैरह बताए. वही सारी स्किल्स चाहिए. अच्छा, वही जो है. कोडिंग है मेजर पोर्शन इसमें. अगर आपका अगर अच्छा पैकेज चाहिए, देखो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ट्राई कर रहे हैं. ओके, ये जो मैंने 1500 घंटे बताए हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ सर्विस बेस्ड कंपनी हो तो हो सकता है 500 घंटे में आप क्रैक कर पाए, और फिर आपको 3.5 से 4.5 के पैकेज में कुछ रहना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो अभी आप 1-2 महीने और खेल कूद सकते हैं. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम जनवरी. जब जागो तभी सवेरा. सेलेक्ट अ सेट ऑफ स्किल्स व्हिच कैन हेल्प यू गेटिंग सिलेक्टेड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज. जो तुम बात कह रहे थे क्या करना है, वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो मैक्सिमम कंपनीज में मेरा हेल्प करती हैं, उन स्किल्स को इंप्रूव करते जाना है. राइट. अपनी वीकनेसेस फाइंड कर लो अर्ली. अच्छा यार, मेरा तो ये ना एप्टीट्यूड बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मेरी कोडिंग कमजोर है, या मेरी कोडिंग तो बढ़िया है, मेरी मतलब डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग ये नहीं आता, इसको करें. और फिर प्रैक्टिस करते चले जाओ भाई. ये एक मूल मंत्र है सक्सेस का. अगर मैं स्किल्स की बात करूं, जो मैंने ये कहा, सेलेक्ट अ सेट ऑफ स्किल्स व्हिच कैन हेल्प यू गेटिंग प्लेस्ड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज. अगर मैं इसकी बात करूं तो एप्टीट्यूड, हालांकि ये जन्मजात होता है बहुत सा, इसको लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है. लॉजिकल रीजनिंग, ये भी आपकी होती है बनी बनाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो इंप्रूव हो जाएगी. कम्युनिकेशन स्किल्स, इस पे काम करने की जरूरत रहती है हमेशा.
फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कोडिंग, और इसमें डीएस, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स, बहुत जितना प्रैक्टिस करोगे, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज नथिंग बट। हाँ सर डेटा साइंस में भी डीएसएल को चाहिए होता है? भाई अगर डेटा साइंस की बात करोगे, 2-3 कंपनी आती है हमारे यहाँ, तो अगर फिर तो इतना जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, अगर सिर्फ आपको डिसाइड ही कर लिया है कि डेटा साइंस में जाना है, बट यू आर लिमिटिंग योर चांस टू ओनली 2-3 कंपनीज। उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वैसे डेटा साइंस का? तो स्किल सेट क्या क्या होता है? हाँ, स्किल सेट ये सारी चीजें तो रहती हैं, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स तो रहती हैं। उसके साथ आपका डीबीएमएस, एसक्यूएल, ठीक है, केस स्टडी, ये सारी चीजें रहती हैं। कोडिंग उसमें ज्यादा नहीं पूछते, लॉजिकल रीजनिंग पूछते हैं, एक गेस्टिमेट करके आता है इसमें, ठीक है। मैंने अभी एक सेशन रखवाया था, हमारे जब 196 सिलेक्शन हुए तो मैंने एसबीए से रिक्वेस्ट करके, स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से, केस स्टडी पे भी उनके सेशन रखवाए, और हमने उनके सेशन रखवाए उस पे भी, गेस्टिमेट्स पे। तो कोडिंग डीएस हो गया। उसके बाद आपके कोर, जिसमें कि ओएस, ऊप्स तो जब आप कोडिंग अच्छे से कर लोगे तो वहीं से आ जाएगा, सीएन, डीबीएमएस और समटाइम्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कोर। और फिर अपने कोर के 2-3 सब्जेक्ट। सर प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? जावा, सी प्लस प्लस? देखो सब कंपनीज सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन का देती हैं आपको ऑप्शन ज्यादातर। इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, लैंग्वेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। और लैंग्वेज स्विच करने में इट विल नॉट टेक मोर देन 1 वीक। ठीक है, 1 वीक से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए लैंग्वेज स्विच करने में। सिंटैक्स ही तो है, और क्या फर्क है? सर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डोमेन से रिलेटेड आती हैं कंपनीज? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एज सच नहीं आती, बट अगर आप साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हो, आपका सीएन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो AWS मे बी ए प्रिफर्ड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि उसमें उसी तरह का काम रहता है। बट साइबर सिक्योरिटी की 1-2 कंपनी आती है, साइबर ग्रुप है, जैसे 1 या 2 कंपनी आएंगी, 2-3 डेटा साइंस की आएंगी। एक्चुअली दिस इज ए मिसकंसेप्शन। ये मिसकंसेप्शन मतलब मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपनीज फ्रेशर लेवल पे एक्सपर्टाइज नहीं देखती कि आप डेटा साइंस के एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट हैं। वो एक आपका जनरल एप्टीट्यूड देखती हैं इंजीनियरिंग के प्रति, कोडिंग के प्रति, लॉजिक के प्रति। और ज्यादातर कंपनीज आपको फ्रेशर्स हायर इस तरह से नहीं करती कि मशीन लर्निंग के लिए हायर करें, डेटा साइंस के लिए हायर करें, बहुत कम कंपनीज करती हैं। और मशीन लर्निंग पे जिस लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए होता है, वो भैया एमएससी का मैथमेटिक्स, एमएससी लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए होता है, वो आपको आता नहीं है। आप सीधे सीधे लाइब्रेरी लगा के उसको यूज तो कर लेते हो, बट उसके पीछे का मैथमेटिक्स जब तक नहीं समझोगे तब तक आप कंपनी के लिए यूजफुल नहीं होगे। ऐसे तो हॉट टॉपिक आप कहो कि भाई एआई, रोबोटिक, देखो अगर मैं हॉट टॉपिक की बात करूं तो एआई, एमएल, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, लेकिन इस पे कंपनी तो नहीं आती हमारे यहाँ, बहुत कम कंपनीज आती हैं। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हायर फ्रेशर एट दिस लेवल। क्योंकि फ्रेशर सीधे एआई में काम कर ही नहीं सकता, रोबोटिक्स में काम बड़ा मुश्किल है उसके लिए। या तो फिर आपने बिल्कुल इंटर्नशिप्स की हुई हो और किसी अच्छी कंपनी में आप शुरू से जुड़े हुए हो, आप उस लेवल के मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हो, तब फिर आप कर सकते हो। बट दैट इज, वो कैंपस से उम्मीद मत रखना भाई, नॉट फ्रॉम कैंपस। डेटा साइंस की जरूर हम लाते हैं,
तो मेरा मानना तो यह है कि अगर आप ये सब काम आप करो जॉब लेने के बाद, आप अगस्त सितंबर तक आपने जॉब ले लिया, आपके पास पूरा फाइनल ईयर पड़ा हुआ है, अगर कंपनी ने अर्ली ज्वाइनिंग नहीं दी तो अब आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप खूब टक्कर मारो, राइट? डज इट मेक सेंस? यस सर। यस सर। और मुझे और आवाज चाहिए भाई इस पे खास तौर पे। यस सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छी चीजें नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी नहीं है, these are good things, but for placement point of view and getting placed from campus, these help you little, and मैं कहता हूँ आप अपना फाइनल ईयर के दोनों प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, इसमें करना चाहो आप करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं 30 जुलाई तक आपको नहीं चाहता कि आप इसमें इन्वॉल्व हो। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, अगर हम किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स और प्रोजेक्ट हमारा कितना अच्छा है, उसका क्या रेशो रहना चाहिए? लाइक प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए या प्रोग्रामिंग पे? 80-20, 80% कोडिंग, 20% प्रोजेक्ट। ओके सर। और प्रोजेक्ट फिर आपको पूरा अंदर से पता होना चाहिए क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, कैसे है, और उस तरह का हो कि डिलीवरेबल दिखे उसको। ठीक है? ये कॉमन सेट ऑफ स्किल्स हैं जो मैंने निकाली थी, वो जो आप पूछ रहे थे। क्वांटिटेटिव आपको करना होगा, लॉजिकल रीजनिंग करनी होगी, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, कोडिंग, कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, C++, जावा, पाइथन में से कोई भी ले लो, DS प्लस एल्गो प्लस बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, CN। स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ये 2019 वाला PPT आ गया। ये तो मैंने उनको देखो, हम धीरे धीरे ना ये डेट अपने अनुभव से, ये डेट पीछे सरका रहे हैं भाई। ये बना था 2020 बैच के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई जून, जुलाई और अगस्त 2019 को आप पूरी तरह से यूज करो 2020 बैच के लिए, ठीक है? फिर जब हम 2021 बैच पे आए तो हमने उनको शुरू करा दिया फरवरी से, फिर भी हमें लगा कि टाइम कम है, तो हम आपको कह रहे हैं अक्टूबर से, क्योंकि अब जाके हमें समझ में आया कि जब हमने फरवरी से शुरू कराया था, फरवरी 2020 से शुरू किया था, तब भी हम 2021 बैच के लिए वी वर लेट। क्योंकि उनका अभी भी प्रिपरेशन चल रहा है, वो बहुत सारी चीजों में भी कच्चे हैं, तो वो दिक्कतें हमें आ रही हैं। हालांकि क्योंकि हमने जून जुलाई से फरवरी पे ले आए, तो हमारे अमेजॉन के शॉर्ट लिस्टिंग 6 से 20 पे पहुंच गई, जोश के 0 से हम 8 पे पहुंच गए। बट इवन दो हमें ये लगा कि ये शुरुआत भाई अक्टूबर से होनी चाहिए, ठीक है? एक चीज इसमें आती है समर ट्रेनिंग की, समर इंटर्नशिप की। मेरा तो मानना यह है कि समर इंटर्नशिप में अपनी स्किल्स अपग्रेड करने पे फोकस करो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम मिलता है 2 महीने का, इस बार पता नहीं कितना मिलेगा, बट जिसमें कि आप टोटली फ्री होते हो एंड यू कैन, उसके तुरंत बाद आपका प्लेसमेंट सीजन शुरू होने वाला होता है। तो इंटर्नशिप कहीं से भी सर्टिफिकेट ले लो, या कुछ अगर, या तो कोई ऐसा इंटर्नशिप ऐसा मिल जाए जो कि PPO में कन्वर्ट हो सकता हो, या कोई आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट में लग रहा है कि हाँ ये प्रोजेक्ट अगर बन गया तो फिर मेरी जिंदगी बन जाएगी, मेरा प्रोफाइल बन जाएगा। अदरवाइज इसको स्किल्स अपग्रेड करने में यूज करो। सर तो फिर अगर मतलब कोई बच्चा हो जिसने एक भी इंटर्नशिप नहीं करी, तो ये कंपनी में कोई वो बैड एटीट्यूड नहीं डालते बच्चे का कि मतलब कि उस पे? तो यार ऐसा है ना, कंपलसरी इंटर्नशिप है, तो सेकंड ईयर के बाद ही आपको करनी ही करनी है। सर यस सर, वो तो ट्रेनिंग है ना एक तरीके की, इंटर्नशिप इज इन द सेंस। ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, इंटर्नशिप्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो सर मतलब कि अगर देयर आर 2 स्टूडेंट्स who have the same skill set but one has done internship and one has not, तो सर कंपनी किसको लेगी? इंटर्नशिप अगर मीनिंगफुल है ना, अगर मीनिंगफुल इंटर्नशिप है, कोई प्रोजेक्ट आप दिखा सकें कि भाई हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किया है और ये बड़ा फंडू प्रोजेक्ट है,
तब फिर थोड़ा सा फर्क पड़ता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब इट कैन बी अवॉइडेड अगर हम अपने स्किल्स पे फोकस करें तो। हाँ, सर्टिफिकेट ले लो कहीं से अगर मिल जाए तो, सर ट्रेनिंग करोगे तो वो भी सर्टिफिकेट दे देगा, या मतलब अवॉइड कर सकते हो। प्रोजेक्ट बनाओ, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट बनाओ। देखो ज्यादातर इंटर्नशिप में क्या होता है, ये जो 6 वीक्स की इंटर्नशिप होती है ना भाई, इसमें कंपनी आपको बर्डन की तरह से लेती है। आप कंपनी में घुसे, ठीक है, कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 हफ्ते आपके इंडक्शन पीरियड लग गया कंपनी समझने में, कंपनी कल्चर क्या है। अब बंदा बॉस आपको असाइन होगा, उससे बात करोगे। अच्छा, लास्ट के 2 हफ्ते में आप कहते हैं यार मेरा टाइम हो गया, मैं चलने जा रहा हूँ, मुझे रिपोर्ट भी लिखनी है, तो बीच में प्रोडक्टिव वर्क बचा 2 वीक, तो कंपनी ये कहती है यार मैं अपने रिसोर्सेज इस बंदे के ऊपर क्यों खर्च करूंगी, 2 वीक के लिए मेरे लिए प्रोडक्टिव रहेगा। तो अगर ये 6 मंथ इंटर्नशिप हो ना, तब तो कंपनी अच्छे से प्रोजेक्ट कराती है और वो फिर उसको पीपीओ में भी कन्वर्ट कर देती है। जनरली ये जो 6 वीक्स वाली इंटर्नशिप्स हैं, ये कन्वर्ट होती भी नहीं है पीपीओ में। ओके, You will agree with me? यस सर। यस सर। तो ये हमने कोक्यूब्स का एक असेसमेंट किया था, 2020 बैच में कोक्यूब्स कराया था, तो दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, है ना। 219 बच्चों ने दिया था 360 के बैच में से, बिकॉज इट वाज वॉलंटरी। उसका प्री एसेस टेस्ट हमने चेक किया, वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उसकी जो हाइलाइट्स हैं, क्योंकि वो बैच टू बैच ज्यादा वेरी करती नहीं, 9 स्टूडेंट्स ने 600 प्लस स्कोर किया, दैट इज ए वेरी गुड स्कोर। 550 प्लस स्कोर भी हम अच्छा मानते हैं, तो ये करीब 70 बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा था। ये ध्यान करो, ये प्री एसेस टेस्ट है, इसके बाद इन्होंने अपना स्कोर इंप्रूव किया। प्री एसेस में काउंट नहीं होता, उसके बाद टेस्ट 1 होगा, टेस्ट 2 होगा और टेस्ट 3 होगा। ये 3 टेस्ट मिलते हैं। प्री एसेस करा देते हैं कि आपका हम कॉलेज लेवल पे होता है, कॉलेज से बाहर करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये बढ़ा होगा। बाकी 500 से कम स्कोर तो फिर पुअर है बहुत, लेस देन 500 बहुत कमजोर स्कोर है, दैट पर्सन नीड टू सीरियसली वर्क ऑन। एक्सक्यूज मी सर, इस टेस्ट में मतलब क्या क्या चीजें आती हैं हमारे? बेटा मैंने बताया था ना कि एप्टीट्यूड का एक सेक्शन रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग का एक रहेगा, वर्बल का एक सेक्शन रहेगा, फिर कोडिंग का एक सेक्शन रहेगा आपका, फिर एक कोर का एक सेक्शन रहेगा, और आपका एक और रहती है वो ईमेल एसे राइटिंग वगैरह का भी रहता है सेक्शन। तो उस तरह से 7 या 8 सेक्शंस होते हैं इसमें, 8 सेक्शंस होते हैं शायद, ठीक है। हाँ ये हैं, तो कोक्यूब्स के एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, डोमेन, कंप्यूटर फंडामेंटल, वेब, कोडिंग और इंग्लिश। डोमेन में आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ईसी वाला अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, ट्रिपल ई वाला अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है, सीएससी वाला अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शंस हैं मेरे ख्याल से। टोटल 100 के 7 होंगे, 100 into 7 = 700, और 700 में से स्कोर आता होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड लाइक दिस। समरी ऑफ मेजर एरिया ऑफ कंसर्न, हमारा कंसर्न था 64% स्टूडेंट्स हैव लो एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स। 1%, this is the major concern, only 1% students have high coding skills and 21% have moderate coding skills। तो अगर मैं इन 22% को छोड़ दूं, वैसे तो ये 21 भी नहीं काउंट होने चाहिए, तो 78% have poor coding skills। और इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, आप भी हैं, मतलब आप भी हैं, हम भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है, सिस्टम भी है। ये एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है हमारा। डोमेन नॉलेज भी कमजोर है आपकी। क्वांटिटेटिव में 22%, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, रीजनिंग अच्छी है, क्वांटिटेटिव में कमजोर है। ये एक ना, ये दिल्ली के बच्चों की खास बात है। अगर मैं किसी गांव के बच्चे की बात करूंगा, उसका क्वांटिटेटिव में अच्छा स्कोर आएगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स में पुअर स्कोर आएगा। बट आप लोग ने, दिल्ली के बच्चे क्वांटिटेटिव में थोड़ा पुअर परफॉर्म करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो हमारा आउटसाइड दिल्ली के है नहीं, अगर आप कस्बों में या गांव में पढ़े हुए हैं तो वहां पे बेटा क्वांटिटेटिव अच्छा मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल पुअर मिलेगी। मैं तो अपना जानता हूं, मैंने अपनी 12th जो है गांव के स्कूल से की थी,
तो क्वांटिटेटिव में जो कैट क्लियर बच्चे थे उनको मैं बीट करता था, और कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बार मैं जाके घबरा गया था कि इंजीनियरिंग कैसे करूंगा, इतनी सारी किताबें अंग्रेजी में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, और छोड़ने का मन बना लिया था मैंने। फिर बाद में तो सब आदत सर पड़ ना गई। सर जो ना गांव से हैं ना मतलब दिल्ली से हैं, आउटसाइड दिल्ली से मतलब किसी नहीं वो शहर। तो भाई ऐसे मुंबई है, इंदौर है, और ऑल दीज आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर सेम। क्वांटिटी एप्टीट्यूड कमजोर होता है। अच्छा ये मान के चलो 10 लाख से छोटी आबादी में हो तो अच्छा क्वांटिटिव रहेगा, कम्युनिकेशन पुअर रहेगी। 10 लाख से बड़ी आबादी में रूल ऑफ थंब अगर माना जाए तो। सर एक डाउट था मेरा। एक कॉल ले लूं, एक सेकंड। हेलो, देखिए मैं क्लास में हूँ, मैं 15-20 मिनट में बात करता हूँ। हाँ ओके, हाँ बताओ। सर जैसे जो और सर जो हाईली गवर्नमेंट अच्छे हाईली रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज जैसे DTU NSIT हो गए, उनमें सर एक स्ट्रैटेजी अपना बच्चे यूज करते हैं कि कंपनी ओरिएंटेड पढ़ते हैं, जैसे कि GFG पे उठाया, उसके उसी कंपनी के 100 150 200 क्वेश्चन कर डाले और फिर हो गया सिलेक्शन। बेटा एक चीज और बताऊं ना, यस सर। उनका जो बेस है वो आपसे मजबूत है। हाँ सर मैं वही पूछ रहा था कि जैसे कि कंपनी ओरिएंटेड में कोई बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ नहीं, बहुत सारी प्रोडक्ट यू कैन बी कंपनी स्पेसिफिक, बिल्कुल यू कैन बी कंपनी स्पेसिफिक, बट एक बहुत ज्यादा कंपनी स्पेसिफिक होना भी जरूरी नहीं है। मतलब आप एक सेट तो डिसाइड कर ही सकते हो ना, बेसिक सेट ऑफ स्किल्स है वो तो आपके पास होना ही होना है, क्वांटिटेटिव आपके पास होना ही होना है, लॉजिकल आपके पास होना ही होना है। अब आप ये कह सकते हो कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा रहा तो मैं DSLGO में नहीं जाऊंगा, मैं मुझे डेटा साइंस चाहिए तो मैं या तो सर्विस बेस्ड कंपनी में जाऊंगा या डेटा साइंस में जाऊंगा। अगर आप सिर्फ डेटा साइंस कहोगे तो आपके चांस बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। मान लिया जेडएस नहीं आई अगले साल, फिर क्या करोगे? जेडएस हमारे यहाँ आती है, बच्चे लेके जाती है, एक दो कंपनी और आती है, मान लिया दोनों कंपनी नहीं आई, फिर आप क्या करोगे? जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको DSA पे फोकस करना है, DSLGO। तो उसके लिए तो आप कंपनी स्पेसिफिक हो सकते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल Amazon आ रही है हमारे यहाँ। नहीं, उसमें कंपनी स्पेसिफिक आप हो लास्ट में, जब आप जुलाई में पहुंच जाओ ना, आप जून जुलाई तक तो पूरी जम के तैयारी करो ना भाई। और DSLGO में क्या कंपनी स्पेसिफिक होगे? DSLGO में जैसे रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना सर नेक्स्ट ईयर। वो तो फिर हम आपको लिस्ट वगैरह देंगे, इसमें कोई बात नहीं, विल सपोर्ट यू इन दैट। ओके और थैंक यू सर। ठीक है सर, फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या रोल है कैंपस प्लेसमेंट में? हाँ वो मैंने बताया था ना, जो आपका स्टार्टअप्स हैं, पुराने स्टार्टअप और न्यू स्टार्टअप, ठीक है, ओल्ड स्टार्टअप एंड न्यू स्टार्टअप, दीज रिक्वायर वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट। ठीक है सर, तो और जो जैसे Amazon में अगर जैसे प्रोजेक्ट्स तो हमें दिखाना ही है, अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो, तो सर फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्किल, हमने वेब डेवलपमेंट कर लिया, ML कुछ कर लिया, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को वो रिकॉग्नाइजेबल मानते हैं? मतलब कि 80% तो आपकी DSA स्किल्स पे आपका हो सकता है सिलेक्शन। वेब का प्रोजेक्ट अच्छा माना जाता है, आप GSOC के लिए ट्राई करो। किस टाइप सर? वेब में भी जैसे बहुत सारी चीजें आ गई, फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक ही करोगे यार, फुल स्टैक ही कंसीडर किया जाएगा, फ्रंट एंड बैक एंड में ज्यादा इतना फुल स्टैक डेवलपमेंट करो। आंसर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। हाँ तो वही तो बताया, वेब डेव और मोब डेव। मॉब में सर मतलब GSOC वगैरह अगर हम ट्राई करते हैं एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें डिफिकल्टी की है, लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा ऑल्टर करती है हर ऑर्गेनाइजेशन में। वो तो है, बट एक आपकी कैपेबिलिटी पे एक वो बन जाता है कि ये भाई GSOC क्लियर किया तो बंदे में दम है। बहुत सारी चीजें आपकी मतलब कंपनी छोड़ देती है कि कोई बात नहीं, बंदा डेडिकेटेड है, इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। अराउंड कितने स्टार्टअप्स आते हैं सर कॉलेज में वेब डेवलपमेंट के? मतलब ये समझो 8 से 10 तो आते हैं। ठीक है, अच्छा अपने कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे चैट में भी लिख सकते हैं, बट एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अभी हम एक प्लान आप लोगों के लिए ये है कि अभी 20 तारीख से, अभी मैं अप्रूवल के लिए भेजा है इसको, 20 अक्टूबर से 6 से 10, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, लेट द अप्रूवल का। सर बता दो, सर बता ही रहे थे, बता दो।
सर बताओ। अप्रूवल आने दो एक बार। तो कोडिंग के लिए हम कुछ क्लासेस आपके लिए चलाना चाह रहे थे, है ना, DSLGO के लिए, और वो अभी तो सर बता दो, अगर नहीं आया अप्रूवल तो अपने एंड पे स्टार्ट कर लेंगे हम थोड़ा सा। सर सही है। नहीं, अब DSLGO की प्रिपरेशन शुरू कर दो, बस मेरा तो कहना ही है। एक बार आपको मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा, ठीक है। अब आपको कोई क्वेश्चन? DSLGO के कंटेंट थोड़ा बहुत एक तो अपने सीनियर से पता करो, ठीक है ना। DSLGO के लिए कंटेंट अपने सीनियर से पूछो कहाँ से वो कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। सीनियर से टच में कितने लोग हैं? हाँ, जो एडोब का कोक्यूब असेसमेंट है वो 19th को है, बट अभी तक उसकी डिटेल शेयर नहीं हुई। ओके, ईमेल पर था कि लाइक वो गूगल फॉर्म था, वो रजिस्टर कर दिया था, उसके बाद उसके रिगार्डिंग कोई मेल नहीं आई। मैं एक बार संजय सर से पूछ लेता हूँ। एक्चुअली आज सुबह से उनकी तबीयत बहुत खराब है, एंड ही वाज विलिंग टू जॉइन दिस मीटिंग बट ही कुड नॉट जॉइन। ओके सर, मैं कल उनसे बात करता हूँ, है ना, फिर बताता हूँ आपको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आपने कहा कि जब कंपनीज आती हैं वो 12th की परसेंटेज एंड 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली भी देखती है, बट वी सम आर एलीज, सो सर डिप्लोमा के परसेंटेज मैटर्स करते हैं एज वेल एज एटलीस्ट डिप्लोमा की परसेंटेज 65% ही मानते हैं, उसको हम 12th के इक्विवेलेंट मानते हैं डिप्लोमा को। ओके, थैंक यू सर। सर हाँ सर, जो बीटेक की परसेंटेज होती है वो एग्रीगेट लेते हैं कि कौन सी लेते हैं सेमेस्टर वाइज? बीटेक की हम एग्रीगेट की बात करते हैं। नहीं सर, एग्रीड सर मेरी जैसे 77 बन रही है, और सर क्रेडिटेंशियल 67-70 आ रही है, तो वो कौन सी एग्रीड ही लेंगे ना। हम बेनिफिट ऑफ डाउट जहां पे चल जाती है ना, जहां पे जिसका फायदा चल जाता है उस हिसाब से लिख देते हैं, कोशिश करते हैं। डाटा साइंस का पैकेज जो है ना, जैसे जेडएस की बात है, जेडएस का मतलब 8 लाख का पैकेज है, ठीक है। ऐसे ही म्यू सिग्मा एक आई थी इस साल, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, पिछले साल आई थी, उसका पैकेज 21 लाख था। सर जो एवरेज जो कोडिंग में उसका मिनिमम कितना लग जाता है, मतलब एवरेज कितना लग जाएगा जो एवरेज जो कोडिंग में? एवरेज तो बीपीआईटी का एवरेज मान के चलो भाई, पिछले साल 5.2 था, इस साल हम 6 टारगेट कर रहे हैं, तो 5 से 6 के बीच में मान के चलो। 6,50,000 रुपए महीने का एवरेज होगा। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, यस सर फॉर इंटर्नशिप के लिए कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं सर? कॉलेज कुछ हेल्प करता है उसमें? इंटर्नशिप में हम ऑन जॉब इंटर्नशिप में ही हेल्प करते हैं, ठीक है। समर इंटर्नशिप में ज्यादा हमारी हेल्प रहती नहीं है। वी फोकस ऑन द ऑन जॉब इंटर्नशिप। जैसे अभी एक कंपनी थी MU या जोश टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसने कहा कि भाई मुझे तुरंत चाहिए ज्वाइनिंग, तो उनको हमने करा दी अक्टूबर में ज्वाइनिंग, तो वो इंटर्नशिप है अभी, और उसके बाद PPO मिल जाएगा। 8 लाख का पैकेज है, इतने 35,000 रुपये महीना दे रही है, तो हम इंटर्नशिप पे फोकस नहीं करते ज्यादा, देखो फ्रैंकली स्पीकिंग। तो सर फिर हम लोग कहाँ से अप्लाई फॉर इंटर्नशिप? मैं देखो, अपने रिलेशंस यूज करो, या फिर मेरा कहना तो यह है कि आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करने में टाइम लगाओ। हेलो, बट सर आई थिंक इट इज अ रॉन्ग थिंग सर। सर क्या? हेलो, हाँ बोले। हाँ जी सर, जोश में जो इमीडिएट ज्वाइनिंग आई है सर, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग थिंग सर, क्योंकि अगर जो बच्चा सर 8 लाख का मतलब क्लियर कर रहा है, तो आई थिंक ही हैज अ पोटेंशियल टू क्रैक Amazon and any other product based company. So sir, we can't force him to join Josh, right sir? Sure. Because my friend just cracked Josh and he selected for the Josh, but I think he cracked Amazon also. And he cleared the coding round as well. Yes. But I think it is not fair to force him to join immediately. Abhishek Tanwar. Yes sir, yes sir. Abhishek, that is a very good question you asked, and this will help me to clarify certain things. First of all, we do not force anyone to apply in any company. We just share the job description with the students. We ask the students to read it carefully, and only if you are interested, then only you are supposed to apply. There are certain conditions, bonds होती हैं, immediate joining होती हैं, ठीक है ना। कंपनी जो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करती हैं जो ज्वाइनीज पे, फ्रेशर्स पे, वो आप पहले पढ़ें, समझें, आप अपने अच्छा भरा बुरा समझने लायक हैं,
आपको अगर ये लगता है कि आप जोश के लायक नहीं है और आप अमेजोन के लिए जाना चाहते हैं तो यू ड्रॉप, यू डू नॉट अप्लाई फॉर जोश, राइट? यस सर, बट आई थिंक कि आप लोग का भी कुछ सपोर्ट होना चाहिए। कैसे? यस, टू टॉक विद द एचआर ऑफ दैट कंपनी। बेटे वी आर नॉट एट डिक्टेटिंग टर्म्स, वी आर नॉट IITs, वी आर नॉट NITs। हम बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के लाते हैं। आपको पता है कंपनी लाने के लिए कितना हमें हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, और कंपनी आ गई उसके बाद। अच्छा, दूसरी चीज, आप लोग क्या गलती करते हो, पहले तो IIT NIT नहीं है, हम बड़े हाथ पैर जोड़ के कंपनी को लाते हैं। 1-2 कंपनी हमारे कॉलेज में आती है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं, ये दिस इज ट्रू। ये करना पड़ता है हमें, ऐसे नहीं आता। और लेकिन वी आर डूइंग बेस्ट अमंग आवर पियर्स। जो हमारे पियर्स हैं, चाहे आप नॉर्दर्न इंडिया देख लो, चाहे GTPIT देख लो, MSIT, MIT, वी आर बेस्ट अमंग देम। इतना इंटेक हमारा है, उस हिसाब से नंबर ऑफ कंपनीज आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है ना? यस सर, आई नो सर, वी आर वेरी सपोर्टिव, बट वही है सर कि उस कांटेक्स्ट में भी लिसन टू मी, आप शांत रहिए। इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा एलिब्रेट करना चाहूंगा, म्यूट ऑल कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग। आप जिस ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, मैं आपके साथ 2-3 इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। एक कंपनी है MU, ठीक है, 6 लाख का पैकेज है। हमने पहले ही बोला भाई इमीडिएट ज्वाइनिंग है, ये है, बॉन्ड है, सारी चीजें। वो पढ़ के 60-70 बच्चों ने अप्लाई किया, 6 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू में, 6 में से एक तो इंटरव्यू छोड़ के भाग गया। 2 बच्चे जो फाइनल शॉर्टलिस्ट हुए, उन्होंने कहा कि हम जॉब लेंगे नहीं। तो अगले साल आपके बैच के लिए वो कंपनी आएगी? They did great disservice to your batch. We will not be able to bring MU for your batch. Now you can unmute. You can throw light. Would you think it will be good? अच्छा, अगर जोश में 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और 8 के 8 ज्वाइन ना करें, तो क्या 8 2022 बैच के लिए आएगी जोश? No sir. Yes sir, I understand your concern. No sir. बच्चे, कंपनी आती है, HR अपना टाइम लगाता है, कंपनी के बहुत पैसा लगता है कोई भी रिक्रूटमेंट ड्राइव करने में। उसके बाद अगर उसको सिलेक्शन नहीं मिलते, तो चाहे वो इस वजह से ना मिले हो कि कॉलेज के बच्चों की क्वालिटी खराब थी, या क्वालिटी तो अच्छी थी बट बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, दैट कंपनी विल नेवर विजिट। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया, ओके, एंड द कंपनीज आर वेरी सेलेक्टिव। जहां से उन्हें आउटपुट मिलेगा अच्छा बच्चा ज्वाइन करने वाला, वहां पे वो जाएंगी, और जहां पे अच्छा बच्चा ज्वाइन करने वाला नहीं मिलेगा, वहां पे वो नहीं जाएंगे। सर आई हैव अ डाउट। यस सर, आप कह रहे थे बायजूस वगैरह जो होते हैं वो मतलब कुछ टेक्निकल स्किल्स नहीं पूछते। सर फिर ये इंजीनियर्स किस लिए हायर कर रहे हैं, मतलब क्या जॉब प्रोफाइल है? 3 इयर्स देखी थी आपने? यस सर। तो उसमें क्या कहता है, वो इंजीनियरिंग किया, फिर MBA किया, फिर बैंक में जाके नौकरी की, ठीक है ना? इंजीनियर एक ऐसा प्राणी है जो वर्सेटाइल है। इससे आप बैंक में जॉब करा लो, इससे आप डेटा साइंस का काम करा लो, इससे आप सिविल सर्विसेज में DM बना लो, इसको DM MBA करा लो इससे, है ना? क्योंकि इंजीनियरिंग का जो करिकुलम है वो एनालिसिस और कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं, विच आर वर्सेटाइल। सर फिर वो क्या काम कराते हैं, मतलब? मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट। ओके सर। Please tell my planning is correct. DS I'll go to September and practice till July. OSCN in 6th semester and revision of core subjects. ठीक है, very good. Aptitude in June and July. Is it correct? Right? ये गौरव पूछ रहे हैं। सर ये वीडियो सर शेयर कर देंगे? सर मैंने शुरुआत में ज्वाइन नहीं करा था, लेट करा था। वीडियो शेयर करूंगा मैं। रिकॉर्डिंग सर हो रही है इसकी। रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके सर। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं शेयर करूंगा, सारे ग्रुप में शेयर करूंगा। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें अभी आप। अरे प्लीज डू नॉट डिस्क्लोज माय, मैंने नाम डिस्क्लोज कर दिया, सॉरी भाई, मैंने वो पढ़ा नहीं था ऊपर वाला आपका।
और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ बोलिए। सर अगर बैकलॉग है और क्लियर हो गई है तो जो क्राइटेरिया होता है वो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करता। कोई एक रेयर कंपनी होती है जो कहती है ऑल सब्जेक्ट शुड बी क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत रेयर कंपनी कोई होती है, एक मैक्सिमम। ओके सर। जो पुराने पाप तो धुल गए आपके, एक बार आपने बैक क्लियर कर लिया आपके पाप धुल गए, गंगा जी में नहा लिया। सर जिनकी एक भी बैकलॉग नहीं है उनको कुछ सपोर्ट मिलता है? और वो एलिजिबल होते हैं सारी कंपनीज के। और उसके बाद ये है कि सीजीपीए काउंट तो करता है आपका, इंटरव्यू में देखता तो है कि भाई ये टॉप 10% में है, तो आपको बेनिफिट तो मिलता है उसका, नो डाउट। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ ये मतलब पूरे सेमेस्टर के पूरे सेमिनार का एक ही क्वेश्चन है। हाँ। ऐसी क्या क्या चीजें जो हमें प्लेसमेंट सेल से ब्लैकलिस्ट करवा देंगी? देखो हमारी दो तीन चीजें हैं, ठीक है। एक तो जेडी बहुत ध्यान से पढ़ो, और इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट जॉब तभी आप अप्लाई करो, ठीक है। दूसरी चीज, ऑलवेज रिमेन पोलाइट विद द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल मेंबर्स, क्योंकि कई बार ना माता गुमा होता है, एचआर से डांट खा के आते हैं, किसी बच्चे ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है ना, तो वो फिर गुस्सा आपके ऊपर उतर जाता है। तीसरी चीज, मतलब डू नॉट बी ग्रीडी, अपने बैचमेट्स को भी सोचो, अपने बैचमेट्स के बारे में सोचो। पॉलिसी हम रिलैक्स करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द, जब हमारे ज्यादा बच्चे प्लेस हो जाएंगे तो हम रिलैक्स और कर देंगे पॉलिसी को। और बस ये सारी चीजें हैं जो हमारी मेल्स को, हमारे व्हाट्सएप को बहुत ध्यान से पढ़ो, जेडी को बहुत ध्यान से पढ़ो, डेडलाइंस मिस मत करो, जो भी फॉर्म भरने को कहें उसको ध्यान से पढ़ो, गलती मत करो, ठीक है। और अगर कंपनी में रियली इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में तभी अप्लाई करो, नहीं तो अप्लाई मत करो। सर आई हैव डाउट सर। यस सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि सर आप कह रहे हो कि इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन यू कैन ओनली अप्लाई, अदरवाइज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन डोंट अप्लाई। बट सर सपोज इन अगस्त स्टार्टिंग कंपनी हमारी सपोज 3.5 लाख की आती है हमारे कॉलेज में, तो हम अप्लाई करते हैं उसके लिए, एंड समहाउ वी गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। अच्छा। एंड अगर जॉब सेलेक्ट होने के बाद अब नेक्स्ट कॉलेज की ये पॉलिसी है कि अगर इसके डबल पैकेज की कंपनी आती है तो अप्लाई करें, उस पे तो हम अलाउ करें सर। उस पे अलाउ। सर अगर मेरा ड्रीम ये है, मेरा ड्रीम कंपनी ये है कि मैं सिर्फ Amazon ही अप्लाई करूं, बट फॉर दिस आई वांट एक्सपीरियंस ऑफ कोडिंग राउंड। आई जस्ट वांट कि मुझे बात एक्सपीरियंस हो कि मैं 1-2 राउंड पहले भी कुछ फेस कर चुका हूं, तो सर मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा ना। तो सर अगर आपके एक्सपीरियंस के चक्कर में अपनी कंपनी का तो ऐसे जैसे नहीं कर सकते, आपके आने वाले बैचेस भी गाली देंगे आपको फिर। सर उसका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप लोग बैन ना करो अगर किसी बच्चे ने 3.5 का भी ले लिया है, नहीं और फिर अगर वो 4 के लिए भी अप्लाई कर रहा है तो इट्स अच्छा, आपको 3.5 का भी चाहिए, 4 का भी चाहिए, 4.5 का भी चाहिए, और बाकी बच्चे खाली बैठे रहे। नहीं सर, इफ दे हैव अ पोटेंशियल तो वो हम हमको बीट कर सकते हैं सर। ऐसा ओपन टू ऑल ऐसा नहीं होना चाहिए सर। नहीं ऐसा नहीं, यस सर, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं होता दुनिया में। किसी एक कॉलेज की प्लेसमेंट पॉलिसी ऐसी ला के दिखा दो, हम बहुत रिलैक्स करते हैं। बहुत से कॉलेज तो एक ही जॉब ऑफर अलाउ करते हैं प्लेसमेंट सेल के थ्रू। हमने 4 ऑफर किए हैं, एक 3.5 का, एक 6 का, एक 10 का और एक 15 का, भी जो हमारी पॉलिसी है। ओके सर। लेकिन 3.5 वाले को हम 4 में अलाउ नहीं कर सकते। ओके सर मैं भैया की बात सर भैया की बात पे जोड़ना चाहूंगा सर। सर भैया की बात से कुछ रिलेटेड है। तो सर जैसे भैया कह रहे हैं कि हमें जॉब अप्लाई करनी चाहिए, पर हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें और अपने कॉलीग्स का भी देखना है कि वो। अभिषेक तनवर सीनियर बैच के हैं क्या? सर मैं 20 आप 23 के हैं? पता नहीं सर मुझे ऐसे एग्जैक्टली, पर आप कौन से बैच? नहीं सर 22 का। अभिजीत चिंटू तो है ये। जी अच्छा, बैच के हैं ये, इन्हें पता ही नहीं है नाम। 22 का ये, 22 का ये। तो भैया नहीं है ना फिर? भैया क्यों बोलते हैं? बैचमेट है तुम्हारा। सर 22 अभिषेक जो कह रहा है सर जो है कि हमें दूसरे, आपने बोला कि दूसरे कॉलेज के वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि ऐसे अप्लाई करके दूसरे का चांस मिस कर देना। तो सर हमें कॉलेज की तरफ से कोई ऐसा टेस्ट मिलता है इंटरव्यू के लिए, ताकि हम मतलब एक तरह से हमें वो हो जाएगा कि कराएंगे अगला जो इंटरव्यू हमें देना है कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। हम
We have mock test कराते हैं आपको सपोर्ट करते हैं, क्लासेस भी कराते हैं, कोर की क्लासेस भी हमने चलाई हैं 2021 बैच के लिए, आप लोग कहोगे तो आपके लिए भी चला देंगे। तो ऑपरेटिंग this is the main motive sir, why I'm telling you this is the motive कि ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS कोडिंग क्वेश्चन तो खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं, उसके लिए भी हम देते हैं ऑप्शन। आप ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS की क्लासेस हमने चलाई हैं, स्पेसिफिक टू कंपनी भी हमने AWS के लिए, अगर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए मैं प्लान तैयार कर रहा हूँ, अभी एक मॉड्यूल तैयार कर रहा हूँ जिसमें कि मैं नेटवर्किंग और जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो इंटरव्यू में वो मैं पढ़ाऊंगा। हमने केस स्टडीज भी कराई हैं, हमने एस्टिमेट्स में भी क्वेश्चन कराए हैं, बट आप करने वाले होने चाहिए। आपका बेस्ट कितना। एक और क्वेश्चन था कि ये थोड़ा सा मतलब वो है कि आता क्वेश्चन में आंसर कोई देता नहीं इस मामले में। कुछ स्पेसिफिक प्राणी होते हैं हमारे दोस्त जिनको गेट का पेपर भी देना है, जिनको जॉब भी करनी है, गेट के लिए हर जगह हाथ पैर मारना, AWS ले लो भैया। मतलब जिसको हर जगह हाथ मारना है तो वो क्या करे आपके साथ टेस्टिंग लैब करते हैं, वो क्या कौन सा पाथ फॉलो करे? देखो हर जगह तो मत मारो हाथ, 2 या 3 जगह ही हाथ मारो। गेट और AWS इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। जिसने गेट के लिए तैयारी की है ना वो AWS का पेपर निकाल ही लेगा सर। और जिसने गेट ECE की तैयारी करी है बेटा उसके लिए नहीं है, उसको फिर सर्विस बेस्ड कंपनीज पे फोकस करना चाहिए। ओके सर, बट फिर AWS के अंदर जॉब प्रोफाइल तो एक तरह से कॉल सेंटर वाली हो जाती है यार। जॉब प्रोफाइल तो बहुत अच्छी नहीं है, बट 19 लाख का पैकेज है और कंपनी अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि कॉल सेंटर वाली है। बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं, असली इंजीनियरिंग वही यूज होती है, ये भी देख लेना। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन हिलाने वाले आ रहे हैं सर। बट फिर करियर ग्रोथ भी तो नहीं होती फिर आगे, मतलब मुश्किल होती है। कर लो यार बाद में, वो दिक्कत तो है ही नो डाउट, बट अमेजन में ग्रोथ तो है, ऐसी बात नहीं है कि 19 पे हो तो 19 पे रहोगे, ग्रोथ तो होगी। ठीक है, बंद करें आप। इट इज ऑलमोस्ट 2 आवर्स। या कुछ और पूछना है किसी को तो पूछ लो, लास्ट 2-3 क्वेश्चंस। ओके सर, जो आपने वो बताए थे एग्जाम्स बताए थे, जैसे हैक इनफिक्यू करके कुछ बताया था, और कॉक्यूब्स, और जो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्स और ये हैकाथॉन्स हैं सर, इनकी आप एक लिस्ट बना के अभी जो हमने फॉर्म भेजा है दैट इज फॉर दैट पर्पस कि आप एक जल्दी से वो फॉर्म फिल कर दें, ताकि हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, और उस व्हाट्सएप ब्रांच वाइज, और उस ब्रांच पे उस पे फिर आपकी इंफॉर्मेशन सारी आती रहेंगी। सर जो प्लेसमेंट का था, हाँ प्लेसमेंट का गूगल ग्रुप बनाएंगे आपका, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ब्रांच वाइज। यस सर, वो गूगल तो बना हुआ है, गूगल प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है। कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं है, तो उस पे इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। सर एक बार वो जो फॉर्म आपने दिया था उसकी लिस्ट मिल जाती है, क्योंकि याद नहीं आ रहा, शायद पहले भर दिया हो, क्योंकि अभी मैम ने ना वो मैम ने कुछ बच्चों के नाम बताए थे क्लास में कि जिन्होंने नहीं भरा है, पर अब वो कैसे कंफर्म करें कि हमने भरा है नहीं भरा, क्योंकि याद नहीं है, बहुत टाइम पहले आया था वो। गूगल फॉर्म तो भेजा होगा ना? हाँ सर वो भेजा है, अभी उसकी लिंक मैं दोबारा कहाँ पे है दोबारा बोल के मैं भिजवाता हूँ। ठीक है, मैम को भेज दो, मैम आपको भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। तो हम चाहते हैं कि आपकी कोडिंग का और कोर की क्लासेस शुरू करें। अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो फिर हम इनको करेंगे। कोर तो हम करा ही सकते हैं खुद ही। इंटरेस्टेड। हाँ, तो बस वही है कि इंटरेस्ट बनाए रखना है, लंबे समय तक बनाए रखना है, मोटिवेशन अपना बनाए रखना है। टाइम आपके पास है, 4 घंटे प्लेसमेंट को रोज दोगे तो अच्छा प्लेसमेंट जरूर लेके निकलोगे। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ये जो पीपीटी है, पीपीटी शेयर कर दो आप एक ग्रुप में। मैं ये भी शेयर वीडियो शेयर कर दूंगा। ग्रुप कौन सा है मुझे पता ही नहीं, ग्रुप कहाँ कौन से किस के हैं। मैं आईटी वाले में शेयर कर सकता हूँ, बाकी मैं कोऑर्डिनेटर को कर दूंगा, वो कोऑर्डिनेटर कर देगा। एचओडीज को कर देना सर, वो हमारे ग्रुप में कर देंगे। ठीक है। और सर जो चीजें हम अभी लाइक इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, जो पढ़ना और जो एग्जाम्स दे वो उनकी भी डिटेल्स भेज देना। वो आप अपने हिसाब से स्किल डिसाइड कर लो, बाकी कभी भी आई एम जस्ट 1 क्लिक अवे, कभी भी कहोगे दोबारा मीटिंग कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए पहली शुरुआत हुई है हमारी और आपके, अब आपको अगले 1.5-2 साल तक छोड़ेंगे नहीं। व्हाट अबाउट पैप कोडिंग सर? पैप कोडिंग की इस बार का जो प्लेसमेंट प्रोग्राम प्लान है
हाँ तो वो मतलब स्टार्ट होगा हमारे कॉलेज में कि हमें पेप कोडिंग लेवल पे ही अप्रोच करना पड़ेगा? नहीं, मैं वही चीज थी, मैं जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द अप्रूवल। आपकी क्लासेस मोस्ट प्रॉब्ली, जब आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं, मेरा जो डिस्कशन चल रहा है वो आपकी 20 तारीख से 6 बजे से रात के 10 बजे तक रोज क्लासेस होंगी कोडिंग की, पेप कोडिंग के थ्रू। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अप टू सर्टेन लेवल, अप टू 100 आवर्स इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉब्ली। उसके बाद जो अभी वो नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत चल रही है, तो बट अभी आपको कुछ नहीं पे करना। ओके सर, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 100 आवर्स। तो उसके बाद जो कुछ होगा नवंबर सर, बाय द नवंबर। ओके सिलेक्शन प्रोसेस और क्राइटेरिया? नहीं, उसके लिए कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा और उसके बाद शायद फिर कुछ जो भी कमर्शियल्स इन्वॉल्व होंगे वो तब देखेंगे। तो आई एम नॉट, अभी चूंकि कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ, अभी एक नेगोशिएशन वाली टर्म में बातचीत चल रही है, तो आई डोंट वांट टू कमिट, बट क्योंकि आपने पूछ लिया अभिषेक, तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, बी रेडी। मोस्ट प्रॉब्ली 20 तारीख से आपकी 6 बजे से 10 बजे तक DSL को ही क्लासेस हुआ करेंगे। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर तो उनसे रेफरल के लिए भी थोड़ी बात कर लो, क्योंकि वो तो उनका जो प्लेसमेंट प्रोग्राम है जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ अभी। हेलो, उनका जो, यस सर। हाँ नमस्कार मनीष सर। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चंस? तो आप कमर कस लो, तैयार रहो भाई। सर एक डाउट है सर, कोडिंग की तो आपने बता दिया क्लासेस कैसे होंगी, कोर स्किल्स के लिए भी कोई स्पेशल क्लासेस है? तो देखो, एक तो अच्छी बात यह है कि OS और नेटवर्किंग आपका 6 सेमेस्टर में, CSC और IT का, ठीक है। IT वालों को OS में पढ़ाऊंगा, तो मैं इस बार प्योरली AWS स्पेसिफिक और मतलब कंपनी स्पेसिफिक में जाऊंगा, ठीक है। बाकी जो CS में भी पढ़ाएंगे टीचर्स, वो भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे, और कंपनी स्पेसिफिक चीजें हम ट्राई करेंगे कि आपका वहीं कवर हो जाए, OS और नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। तो सर सिलेबस में ही होंगी, मतलब जो सिलेबस में है वही है OS का, तो लेकिन उसके क्वेश्चंस थोड़े अलग तरह के। गेट साइड पे चले जाओ, क्वेश्चन थोड़े उस तरह करा दो। IP यूनिवर्सिटी से थोड़ा, IP यूनिवर्सिटी में देखो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत होती नहीं है, ये वाला इशू है, उसमें हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। वी विल डू दैट। बाकी नहीं तो वो तो क्लासेस हमारे, देखो कोर हमारे हाथ में है। DBMS में डॉक्टर अचल कौशिक, डॉक्टर मोनिका अरोड़ा अच्छे टीचर हैं। OS में मैं आई कंसीडर माई सेल्फ ए गुड टीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पता नहीं, अब बाकी तो मेरे स्टूडेंट्स बताएंगे, बट यस सर, कंप्यूटर नेटवर्क में डॉक्टर दीपाली विरमानी है, तो वी हैव सीनियर टीचर्स, तो कोर की हमें दिक्कत नहीं है। OS DSL को की दिक्कत जरूर थी, तो वी विल ट्राई टू फिल दैट गैप विद द हेल्प ऑफ सम कोडिंग इंस्टीट्यूट। उसमें हमारी कोडिंग निंजा से भी बात चल रही है, कोडिंग से भी बात चल रही है। अब देखते हैं कौन किस तरह से क्या होता है। अच्छा सर, ये डाउट नहीं है, वो क्यूरियोसिटी है। ये अचानक से सेशन आज के दिन कैसे हो गया? मतलब कोई इनविटेशन थी नहीं सुबह से? जब जागो तभी सवेरा वाली बात है ना। ये सेशन मुझे तो मतलब ये ऐसी हो गए? हाँ, हम बहुत चीजें बड़ी एब्रप्टली आती हैं, बड़ी रैंडमली आती हैं चीजें प्लेसमेंट में ना। अभी आज शाम को पता लगा कल सुबह कंपनी का टेस्ट है। एक्सपेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम अस। मैं ये प्लान तो कर रहा था 4-5 दिन से, बट डेट फिक्स नहीं हो रही थी, इसी वजह से कुछ चीजें थी जो पाइपलाइन में थी। मैं चाह रहा था पहले वो फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद करूं, लेकिन फिर डिले हो रहा था, तो फिर मैंने कहा कि आज करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे मैं हो गया, जैसे मैं जो कॉलेज से दूर रहता हूँ थोड़ा सा, जैसे कॉलेज हमारा रोहिणी में है, मैं छतरपुर साइड रहता हूँ, तो अराउंड 2 आवर लगता है मेरे को। जैसे आप कह रहे हो कोडिंग की क्लासेस होंगी, और आप कह रहे हो बेटा यू आर लकी कि अभी ऑनलाइन होंगी, और जैसे वो भी आप कह रहे हो ना कि शाम को है और सुबह अभी तो बुला लिया गया है, जल्दी क्या प्रेफर रहता है? अभी तो कॉलेज खुला नहीं ना। नहीं, मैं आगे के लिए पूछ रहा हूँ, आगे के लिए कि वहीं ठीक है कि भाई जो भी कुछ होगा, जैसे भी होगा, क्या कह सकते हैं। ठीक है सर। भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं चीजें, उसका किसको पता था ये कोरोना हो जाएगा। आप लेकिन एक काम करना, अपना बैच से, अपने सीनियर बैच से ना
पेप कोडिंग का फीडबैक जरूर लेना, दैट विल हेल्प अस टू सेलेक्ट फॉर यू। किसी ने लिया है फीडबैक? एनीवन ऑफ यू? यस सर, फीडबैक नहीं लिया सर, बट हमने अपने Yes, रिसोर्सेज sir. फ्री कर रखे हैं अब। हैं? सर पेप कोडिंग ने अपने सारे रिसोर्सेज फ्री कर दिए हैं अब, जो उनकी free साइट पे कर दिए जितने भी रिसोर्सेज हैं बिल्कुल अच्छे हैं रिसोर्सेज। सर। हाँ मतलब तो अच्छा है। कुछ लेवल तक, मतलब हर टॉपिक उतना अच्छा नहीं है, मतलब कुछ मेरे अकॉर्डिंग तो सर जितने मैंने देखे हैं अभी हाँ तक सर कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं है। देखो हम तो भाई आउटपुट पे ध्यान रखते हैं। हमें ये लगा कि पिछले साल 6 अमेजन एसडी में 6 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, इस बार 20 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। पिछली बार जोश जो डीएस एल्गो में पूछती हैं, अमेजन एसडी भी और जोश भी, जोश में एसडी में हमारे 0 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, इस बार 6 सिलेक्शंस हैं हमारे पास। सर तो वो पेप कोडिंग से हुए हैं। अब मतलब ये लगता है वो हमें तो भाई ये दैट मे बी वन ऑफ द रीजन। जोश वाले ने कहा भी है कि भाई आपने क्या कराया इस बार कि आपके इतने अच्छे सिलेक्शंस हुए हैं। their content is up to the level, बहुत अच्छा कंटेंट है, बट द प्रोसेस इज वेरी टाइम टेकिंग, बिकॉज जो अभी तक बच्चे हैं जिन्हें मैंने फीडबैक लिया है, तो वो कह रहे हैं कि अभी हमारा तो सिलेबस हुआ नहीं है, बट कंपनीज आनी शुरू हो गई हैं। दैट इज व्हाट आई अभिषेक, इसलिए हमने फरवरी की जगह अक्टूबर शुरू किया, और ये बेटर होता कि हम इसको सितंबर में शुरू करते हैं। या सर, लेकिन कम से कम हम अक्टूबर 20 पे तो ले आए इसको समहाउ, और मैं ये बोलेंगे कि भाई इसको 30 जुलाई को खत्म करना है, हद से हद 15 अगस्त। यस सर। अब देखो क्या होता है, आदमी कोशिश ही करता है, प्लान करता है, सीखता है अपनी गलतियों से। राइट। एक्सपीरियंस से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, तो वही सारी चीजें चल रही हैं लर्निंग फेज में। यस सर, बिल्कुल ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच। 2 घंटे की पिक्चर होगी पूरी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।